All right, so question number 1. Hmm. I think I told you this is out of scope. You're not Okay. supposed to be. It's not Okay. in our syllabus. बताया था ना मैंने शायद कि ये वो जो हाँ, joining वाला you said you can bring a question if there हाँ so be a it's out need. of course, out of course. तो ये प्रिंट कर दिए जाते हैं बिना कोई एक्सप्लेनेशन के कि क्यों डाला है, सिलेबस में है कि नहीं है, बट डाल दिया जाता है, राइट? So no need of doing this. If you just want to know briefly what it is all about, you just Yeah. need to do one thing, that it is the way to solve this is 1/3 minus 1/4 is equal to कितना आ जाएगा 1/12. Reverse Yeah. this and 12 centimeter. Oh. Okay, that's simple. But you don't need to get into this. Uh, I mean, the theory should not be as part of your. Okay. Don't apply yourself. There is a rule which is there. Okay, there is a way to apply that rule, which is Okay. not in our syllabus. But just in case you are very curious to know, uh, when they merge with each other, uh, it becomes a bigger bubble. Yes. That's all right. So the bigger bubble, if you want to find the at the interface, curvature of the interface, this is the only thing. You don't need Okay. to worry about it. Okay, just the concept. Actually, I'd seen this question in like 2, 3 places, so हाँ, I so thought. don't worry. सब जगह कट एंड पेस्ट होता है, कोई दिमाग नहीं लगाता. किसी ने इंजीनियरिंग की किताब से कॉपी कर दिया और बस आप परेशान हो गए. इसकी हाइट, ये मतलब लिक्विड बाहर क्यों नहीं निकलेगा, ये बबल का क्वेश्चन कैसा होगा. फोकस ऑन व्हाट इज इन सिलेबस क्रिस्पली. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. Okay. नेक्स्ट, आई एम जस्ट रबिंग दिस जो नीचे लिखा है. ओके, Hmm. we end up wasting time on something which is out of syllabus and unable to do what is in syllabus. Yes. This is a like differential manometer I told you, where you are measuring the height at two different places. तो इन दोनों के बीच में टोटल हाइट कितनी है? ये पूरी हाइट कितनी है? ये 5 है और ये 3 है, राइट? तो यहाँ पे जो आपका ये 0.5 है, 5 है. Actually, the Should be 5. previous question only is visible. अच्छा, पूरा नहीं है क्वेश्चन? No, the previous question number 13 is visible on the screen. Which one? No, I'm putting now 23. अच्छा, okay, I am using a PDF. Go to the PDF and go to the second page. Can you see the PDF? जो मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया था वो PDF थी. वहां हाँ. जाओ, उसके नीचे क्लिक करोगे, PDF पेज नंबर नजर आएंगे 1 2 3 4 नीचे, वो डायग्राम की जो आप पहले देखा था आपने, राइट? गो टू, आई कैन डू वन थिंग that is tough for you now. Can you see? Wait, can you see now? Yes. Okay, so you know what this is, right? This is basically a pressure is being measured. There is a difference in the pressure at two places, Yes. right? So ये इसने डायग्राम बनाया है, ये वाला. Hmm. Now he's asking what is a pressure difference. मतलब I'm not sure what is, why this is not being shown, but क्योंकि सेंटर से अगर नाप रहे हो तो, but if the pressure difference is only h between them, मैनोमीटर है ना ये, Yes. तो the pressure difference is h. So why the pressure difference is there? Because of the different velocities. Yes. तो क्या रूल क्या लगता है फिर? वाटर है शायद, आई थिंक इट्स अ लिक्विड. ओके, व्हाट इज द रूल यू विल अप्लाई? Aaron. फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. बर्नौली का कौन से वाला फॉर्मेट यूज करोगे? एच दिया हुआ आपको, हेड्स दिए हुए हैं, तो कौन सा यूज करना है आपको? आई टोल्ड यू मेनी फॉर्म्स ऑफ बर्नौली, राइट? Yes. So which form should be used? Um, in every one, the first one, unit by volume, we can use maybe. Okay. P1 plus half rho V square, right? Yes. तो लगा लो उसको.
प्रेशर को रो जी एच लिखा जाता है। Yes. तो फर्स्ट साइड इज P1, इसको P1 मान रहा हूं मैं, Okay. प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और ये जो साइड है इसका प्रेशर ये हाई है क्योंकि इसकी वेलोसिटी हाई है, तो प्रेशर इसका ये है, Yes. राइट। तो ये आई थिंक इट्स 0.5, 5 नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, 0.5 है या 5 है। लेट मी टेक इट एज 0.5। ठीक I'll है, tell. क्या है ये? It's 0.5. अच्छा, इट इज राइट, क्योंकि जहाँ वेलोसिटी वो है कम, 5 and 3. द प्रेशर शुड हैव बीन मोर। मतलब यहाँ हाइट भी कम है और यहाँ पे वेलोसिटी भी कम है, हाउ इज दिस पॉसिबल? समझ नहीं आया मुझे ये वाली बात ना। Maybe it could have been 5 only then. मतलब देयर हैज टू बी सम रैशनल कि क्या है ये, इज इट 5, 6, व्हाट इज इट? एनीवे लेट्स ट्राई विद डिफरेंट डिफरेंट। ये अगर पढ़ा ही नहीं जा रहा, मे बी इट इज 6, आई थिंक क्वाइट पॉसिबल। हो सकता है मिटा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है ना, बट एनीवे। सो लेट्स से दिस इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब ये क्या है इसकी चिंता हमें नहीं करनी है, हमें कॉन्सेप्ट लगाने आने चाहिए, राइट? Yes. तो ये समझ आ गया अभी तक? Yes. रो जी H2 माइनस रो जी H1 इज इक्वल टू हाफ रो, डायग्राम गलत है, ठीक नहीं डायग्राम। रो जी, डिफरेंस ऑफ द हाइट इज H, Yes. ये मालूम है, ये मालूम है, रो कट जाएगा सब में, हाँ. आंसर आ जाएगा, H आ जाएगा। सो जी एच इज इक्वल टू half v1 square minus half v2 square, which means the this velocity should be higher, sorry, lower. Yeah. So ये I don't know what this is, God knows. If it is 25, so 25 minus 9 Yes. कितना आ जाएगा ये? 16 Hmm. into 10, 0.8. Yes, 0.8 is the हाँ, answer. मतलब this question was difficult to read, समझ नहीं आया, बट we used our common sense की शायद 0.5 नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो Hmm. बनेगा कैसे ये 25? हाँ. ठीक है ना? ओके, Yeah. ओके। यू शुड हैव बीन एबल टू आंसर कि कौन सा रूल लगाना है, रो जी एच वाला, प्रेशर डिफरेंस अपीयर, प्रेशर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द राइट हैंड साइड, डेंसिटी वाली इक्वेशन है ये। Yes. जो 3 4 थी वो, दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड। वेट, थर्ड, आई एम जस्ट रबिंग दिस, Okay. सो ओवरलैपिंग, वेट, जस्ट कट इट, yeah. So next question is something to do with sheets, right? Yes. हम फूक मारते हैं जैसे बीच में तो वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, Hmm. अगर आप फूक मारोगे वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया भी होता है ट्रेन के पास, वेयर डू वी गेट अ पुश? Right. Right. इफ यू स्टैंड नियर अ ट्रेन, द हाँ. वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज वेरी फास्ट Yes. ऑन अ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, टॉप व्यू में है, और ये आप यहाँ पे खड़े हो, अ ट्रेन कम्स, तो द वेलोसिटी इज वेरी हाई ऑन दिस साइड, Hmm. तो हियर द प्रेशर गोज डाउन। यहाँ प्रेशर सेम ही होता है एटमॉस्फेरिक, यहाँ Hmm. लो हो गया प्रेशर, यहाँ सेम है, तो ये हायर प्रेशर हो गया ना। तो Yes. जो बंदा है वो ट्रेन की तरफ जाता है, उसको झटका लगता है आगे की तरफ। इफ यू ब्लो एयर हेयर, you are increasing the velocity, which Yes. means the pressure here will go down. Hmm. So what will happen? इधर से धक्का नहीं आ रहा है, इधर वहां तो सेम ही प्रेशर है ना, Hmm.
क्लियर? Yeah. पेज नंबर 4, समथिंग टू डू विद, ओह ये बड़ा खतरनाक डायग्राम है। ओह दिस इज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बोलते हैं इसको। एनीवे, जो प्रेशर होता है ना पानी के ऊपर वाले लिक्विड का, वो जब छेद होता है उसमें तो इट कम्स आउट फ्रॉम देयर। Yeah. तो वहां पे A1 V1 लगती है। जो जितना नीचे होगा उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो लिक्विड वहां से निकलेगा, तो दीज आर द ओरिफिसेस, राइट? एक ये है, एक ये, दे आर मेड एट डेप्थ। ओके, सो इस ओरिफिस पे इतने पानी का प्रेशर लग रहा है, जो भी है, जो भी लिक्विड है, और दूसरे वाले पे ज्यादा लग रहा है, H2। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम द अपर टू द लोअर, अपर रेट ऑफ फ्लो निकालना है, मतलब Q इज इक्वल टू A1 V1 टाइप कुछ पूछ रहा है, रेट ऑफ फ्लो। तो कैसे करोगे? इस पे जो वेलोसिटी होगी, हेड होगा यहाँ पे, Yes. वो कैसे लिखोगे? बर्नौली लिखनी पड़ जाएगा यहाँ पे। प्रेशर ऊपर भी है, और वहां वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड है जो निकल रही है बाहर, राइट? Yeah. और नीचे जो लिक्विड है जो छेद से आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स कैसे निकलती है? I know the formula of root 2GH. हाँ, वो कैसे आता है? कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके पीछे, टू जी एच के पीछे? कॉन्सेप्ट मतलब एक्सप्लेनेशन क्या होती है Uh, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स की? कि प्रेशर जो है वो पानी को पुश कर रहा है बाहर, हाफ रो वी स्क्वायर से। हाँ. तो रो जी एच जो है, रो जी एच वो पानी को पुश कर रहा है। इन दोनों को इक्वल करोगे जब, जितना प्रेशर हेड मिलेगा वही वेलोसिटी में कन्वर्ट होगा। हम्म. जो ऊपर का पानी इतना सारा जमा है सर के ऊपर, वो प्रेशर लगा रहा है, अब हाँ. वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली एक तरह से mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा है, Kind. पोटेंशियल एनर्जी हाँ. गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक टाइप्स, राइट? Yes. सिंपली स्पीकिंग, तो हाँ. लिक्विड के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, और एरिया के बीच में कोई रिलेशनशिप दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ कि एरिया इज डबल, कोई नो रेशियो इज गिवन, राइट? No. सिंपल। तो आपको क्या करना है इसके अंदर? यू जस्ट नीड टू वरी अबाउट द प्रेशर हेड एंड द velocity associated with that and divide। और आपको, क्योंकि वो सिर्फ velocity नहीं, यू आर वरीड अबाउट द Q, पढ़ा था ना हमने, फ्लो Q होता है। तो Yeah. एक से तो velocity की रेशियो आ जाएगी, हम्म. लिक्विड तो वही है। हाँ. एक से क्या आ जाएगा डिवाइड करने से? V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? हाइट. इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, A1 V1, दूसरा क्या होगा? A2 V2, डिवाइड कर दें Q1 बाय Q2 को। A1 V1 डिवाइडेड बाय A2 V2, V1 बाय V2 कितना है? रूट H1. तो आप जो बोल रहे थे ना कि मेरे को फॉर्मूला पता है, दैट इज नॉट इनफ फॉर नीट। दैट इज यस. अ बिगिनियर लेवल प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग हम्म. फॉर्मूला फिटिंग। क्यों होता है वो? इसीलिए जब आपको ये इक्वेशन मालूम होती है, तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। सिर्फ आपको जब इक्वेशंस मालूम है, फॉर्मूले मालूम है, यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर नीट। यू कैन ओनली डू 30-40% ऑफ द पेपर करेक्टली। थोड़ा सा बियॉन्ड जाना है आपको, नाम पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट का। क्योंकि मैं, इन्होंने देखो क्वेश्चन पीछे से दे दिया ये, आपको तो ये आता था, चलो इससे अगर मैं डिराइव करूंगा तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH आएगा, सही है। बट रेट ऑफ फ्लो में तो फिट करना था ना, हम्म. वो वाला स्टेप मुझे मिस हो गया होगा। यस. नॉट वेरी हार्ड, बट ठीक है। ओके,
Whenever you're asked a question, always give a concept answer. Don't say कि the formula is this. Because small twist and you will fall flat. Yeah. Try and name the concept. The pressure head is equal to the kinetic head, velocity head. That's a better answer to give. Yes. Right? वो फिजिक्स वाला सुनाई देता है ना थोड़ा, फॉर्मूले वाला मैथ्स का आंसर लिखता है थोड़ा, मैथ्स. Wait, so I'm just trying to. In the next questions, Wait. I've I'm given. just searching for my PDF. कहाँ गई मेरी PDF? Where is my PDF? हाँ, मिल गई. Wait, let's just. Right. So all the shapes are. Wait, let me read. The increasing order of normal reaction. Right. So normal reaction depends on what? It depends on the weight which is coming from the top. Yes. Weight. ये देखो, नीचे का ही पूछ रहा ना, ये बेस का पूछ रहा ना. अच्छा, एरिया एंड ऑल दैट, राइट. सो इफ यू नो द न्यू, बेसिकली अगर आप देखो, ये 5 किलो की बॉडी है, राइट. ये इसको प्रेस कर रही है 5G से. इसको नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा? 5G. Yes. इफ आई मेक इट 5G लाइक दिस, राइट, एरिया हैज गॉन अप, राइट. हम प्रेशर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. प्रेशर इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट. सो इधर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया Yes. ना. इधर एरिया और कम, थोड़ा इधर सबसे कम है, तो हम प्रेशर की तो बात पूछ ही नहीं रहा. वो तो बोल रहा है नॉर्मल रिएक्शन. तो मैं, एक आदमी 80 किलो का हो, वो अर्थ पे खड़ा हो, उसकी शेप ये हो या ये हो या ये हो, क्या फर्क पड़ता है आपको? द मास मैटर्स, राइट. Yes. द अमाउंट ऑफ लिक्विड मैटर्स, राइट. तो ये दिखा रहा है अपने डायग्राम में. टू मी व्हाट इट अपीयर्स इज की सेम हाइट पे, मतलब क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज इंपॉर्टेंट टू मी. जी तो सेम ही है सब में, लेकिन वे एम के बारे में इसने कुछ लिखा नहीं. इज द मास सेम? He's trying to confuse us only through the area. Area is immaterial in normal reaction. It doesn't matter what is the area. So I wanted to compare the three Normal questions. reaction, right? Yeah, wait. So since you have the same height, the only difference is the volume, which he has not said किसमें ज्यादा है किसमें कम है. You can only guess, right? What's your guess? मुझे लगता है A में सबसे कम है, right? और B में जो है वो फिर सेकंड नंबर पे, और 3 में सबसे ज्यादा है. सो द वॉल्यूम ऑफ C इज बिगर देन B इज बिगर देन C. Yeah. इफ द वॉल्यूम इज नोन टू मी, इसका मतलब मास ऑफ दिस इज हाईएस्ट. जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका mg सबसे ज्यादा होगा, राइट. तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. But this question is not up to the mark because it doesn't really convey the difference in volume. You should have clearly said. फिगर देख के बोलना ना, पता तो चल रहा है फिगर देख के कि हाइट सेम है, ये उल्टा है, ये सीधा है, बट फिर भी बी और सी में हाउ डू यू रियली मेक अ डिस्टिंक्शन, Right. है ना. तो मतलब, सो व्हाट यू वर सेइंग समथिंग, गो अहेड. I was saying that the next two questions are also similar, Wait, so I I have not want. reached there. I have not reached there, so I have not seen them. Wait, just open them. नेक्स्ट टू क्वेश्चंस मैं पीडीएफ में ना, जूम पे मैंने पीडीएफ अपलोड करी हुई है, मैं उसमें जा रहा हूँ बार बार और उसको खोल रहा हूँ. ओके, सो लेट मी जस्ट कॉपी इट सो दैट यू इवन आई कैन सी द सेम क्वेश्चन. ओके, सो आई एम जस्ट कॉपिंग इट. टेल मी इफ यू सी इट नाउ. हाँ, बताओ. So Let me read it first. Okay, so there are 4 vessels. They are all 1, 2, 3, 4, and ABC are the bottom
ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, Yeah. सेम हाइट पे हो गए, ठीक है, तो नो वाटर, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्रेशर? प्रेशर इज रो जी एच, Yeah. डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट। तो अगर इन सबकी हाइट सेम है और कॉमन लिक्विड है, Hmm. राइट, देन रो जी एच इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ them. Yeah. Actually, this Pascal's law would be applied here, no? Pascal's law actually is, if you press on one side, the pressure is spread equally in all directions. Hmm. यही होता है ना? Yeah. अगर आप किसी को दबाओ तो वो प्रेशर ट्रांसफर होके ट्रेवल करके चला जाता है हर साइड पे, ट्रेवल्स इक्वली। Yes. दीज आर कनेक्टेड पाइप्स एट रेस्ट, यही है ना, कनेक्टेड फ्लूइड एट रेस्ट, सो द Yeah. प्रेशर इज सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। Yes. So really speaking, the shape of the vessel and the area of the opening really doesn't matter. Yes. That's what he meant, right? Yeah. I just wanted to compare these three questions because uh I had it right and wrong also, so I was confused in it. That's just I want. Which one? Which one? So this is clear. Yeah. Let me go back to the. Let me do one thing, क्योंकि मैंने PDF जो है वो ऐसे रखी हुई है. So I was on question. Okay, now you know. I think the quality of question is pathetic. Just one word. The diagrams. Anyway, 15th is very straightforward. Rho Yes. GH is common. But fourth का कोई खास डायग्राम जो था ना, ठीक नहीं था, मतलब. हाँ, 27th appears to be bit better because it at least talks about equal volume now, Hmm. right? So the Yeah. quality is good. He doesn't confuse and lets us imagine कि किसका मास ज्यादा होगा. लिख दो ना मास, फिर मुझे क्या मालूम. अगर वॉल्यूम सबका सेम है यहाँ पे और लिक्विड सेम है, राइट, तो अब मास डिसाइड करना है हमने बेसिकली, राइट. तो इस किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा लग रहा है मुझे, मुझे वॉल्यूम सेम है, सॉरी, सो गुड फॉर अस. सो द मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो द मास इज सेम. Yes. So the net force on the bottom, if the mass is same, then the pressure, so mg is the weight is the same, Yes. right? So at the bottom सबकी height same है, इसने दी हुई है ये. No, the height is not same. Base area same है. Base area same है, base area भी same है, और ये किस लिए इसने, अगर मेरे पास मास सेम है और बेस एरिया भी सेम है, तो मेरा जो फोर्स ऑन द बॉटम है, फोर्स ऑन द बॉटम का मतलब, व्हाट इज द फोर्स ऑन द बॉटम? दैट मीन्स द प्रेशर इनटू एरिया. मेरा प्रेशर सेम है हर जगह पे क्योंकि रोजीएच सेम है और एरिया भी सेम है, तो प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है? फोर्स. Yes. तो आंसर इज, आई थिंक, फोर्थ. No, third is the answer. ओके, रैशनल क्या दिया? भी वॉल्यूम अगर सेम है, लिक्विड सेम है, मास इज सेम. द मास इज सेम, लिक्विड इज सेम, मास इज सेम, नॉर्मल तो वेट तो उतना ही पड़ रहा है, और एरिया भी बॉटम का सेम है. Yes. यार इसमें सिर्फ यही मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक मेक्स नो, मतलब क्या बोलूं मैं, इफ अगर इसका, इन सबकी हाइट अलग है, ओके, हाँ. तो इनका रो जी एच टू और रो जी एच थ्री है, तो ये, दिस इज नॉट द, दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, विच इज व्हाट आई थिंक इट वाज जो पहले था. पिछला Hmm. क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन के बारे में था. इट वाज नॉट अबाउट द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द बॉटम.
अब इसमें Yes. हाइट किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा? फॉर द सेम वॉल्यूम, इफ यू आर अलाइंड लाइक दिस, तो इस मेरे को लगता है इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, Mm, क्योंकि नैरो होता जा रहा है तो ऊंचा होता जाएगा ये, mm, हाईएस्ट। तो Yes. एच सी इज हाईएस्ट, ओके। Mm, So my answer was the normal reaction is same. But the question is not Yeah. normal reaction. It is net force on the bottom being exerted by the liquid. Yeah. तो एच सी ज्यादा है, अब किसका लिक्विड ज्यादा है, मतलब अब किसका वो हाइट ज्यादा होगा? आई थिंक C. इसका, बी का होगा। C और B में से यार ये क्वेश्चन है पता नहीं क्या, आई डोंट नो व्हाट। एनीवे, वी नो द एसेंस इज हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, और बी जो है क्योंकि वो वाइडर एट द टॉप है तो उसकी हाइट थोड़ी कम होगी, और जो वो है सी, वो सबसे ज्यादा वाइड है, उसकी हाइट सबसे कम होगी। so C is max. Are you saying anything? You are not audible. No, no, I'm just looking at the diagram. Okay, so इधर तो वॉल एरिया सेम था, वॉल्यूम भी सेम था। अगर so, so I think this is a paradox that I earlier said this. Okay, so let me just. So I earlier said the force is going to be mg because Yes. they are equal masses, right? Yes. किसी भी शेप का, दिस इज व्हाट आई सेड, राइट? ऐसा रखो, तो वो मासेस जो होते हैं उसमें अलाउड है mg, बट इफ इट इज अ लिक्विड, right, which means it's a question of hydrostatics, then you have to be careful in one thing, that if you have these shapes, this, this, and एक क्या थी, उल्टी थी ना ये, and this, the force being applied on the bottom is not equal to weight, is not equal to the weight, but it is actually equal to pressure into area, because this force is dependent on height, रो जी एच एरिया। तो ये फोर्स ना मतलब एच से डिपेंड करती है, एच पे। प्रेशर Mm, जिसका ज्यादा होगा, सपोजिंगली यू आर द टॉलेस्ट, राइट, सो दिस इज द टॉलेस्ट एंड द एरिया इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम, राइट, इवन Yeah. दो द वॉल्यूम इज सेम, सॉरी, दिस एरिया, इवन दो द वॉल्यूम इज सेम एंड द एरियाज आर ऑल ए, डायग्राम में तो दिख नहीं रहा लेकिन मान लो ए ही है सारे, एंड द वॉल्यूम इज सेम, द टॉलेस्ट वन will have the highest pressure, rho Yes. gh, right? Yeah. The one which has the highest pressure, if you multiply it with the area, will get you the most force. So I had Yes. a very Newton's law of thinking, mass into g, right? Because the mass is same, volume is same. So I said volume into density becomes the mass, right? And then Mm, since mass is same, mg is same. No, the way you got to think about this is in hydrostatics is you have to see the height to decide the pressure first mm, and then the force.
Don't decide force based on mg in these questions. Okay. ठीक है, रूल समझ आ गया? Hmm. So don't use mg, which I said earlier. Use the context of hydrostatic. The bottom force is not equal to the weight of the liquid, but it will completely depend on the pressure. In the above fourth question, we used weight though, mg. Where? In that where height is equal. Because it was normal reaction, Okay. right? Normal reaction तो mechanics होती है ना, Hmm. न्यूटन. वो तो जो Yeah. ऊपर से फोर्स आ रही है उससे डिसाइड होगा. बट nonetheless, let's again go back to the question, okay? Or Hmm. that you have a confusion in your mind, let's clarify that also. How would we solve something like that? Oh, sorry. We will use the same rationale now and see if you're able to get the same logic applies to that also or not, right? Fourth, Your right? yeah. Okay, Your so screen has also paused. great. So I'm copying something. Now tell me, can you see the image? Can you see? No. Okay. मैं इसको बंद करके I'm starting it again. Hmm. Okay. So you say कि वेट नहीं यूज करा उसके अंदर फोर्थ में, राइट? Hmm. तो नॉर्मल रिएक्शन जो है उसको और वेट को लिंक करते हैं. गिव मी 1 second, okay? Shut down all the windows. All right. तो नॉर्मल रिएक्शन कब यूज करना है? और तो जो फोर्स अभी हमने कैलकुलेट करी थी रो जी एच इंटू ए से, वो हमने निकाली थी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. सही है? Yes. Hmm. That is clear. It is not a Newton mg force, it's a hydrostatic force. The nature of the force is different from ma, Hmm. right? But I say that if you want to support this much amount of liquid on the ground, जो आपका लिक्विड है, वेट ऑफ द लिक्विड है, ग्राउंड को तो उसी को सपोर्ट करना है ना, Yes. तो वो mg है. Okay. अगर मैं आपको एक पानी की बाल्टी का वेट लेने को बोलूंगा, तो पानी की बाल्टी अगर आप वेइंग स्केल पे रख दोगे तो किसका वेट आएगा? mg. Wait. mg वेट आ जाएगा, है ना? हाँ. उसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो मेजर नहीं होगी. नहीं. नहीं. आगे समझ में? तो Yes. जब आप बात करते हैं नेट फोर्स एट द बॉटम, तब आप Hmm. यूज करोगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज रो जी एच इंटू ए. Yes. जब आपको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, तब आप क्या यूज करोगे? mg वाला weight. mg वाला. ठीक है? Yes. ओके, क्लियर हो गया अब दिमाग में? Yeah. तो पहले तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने वही mg का फंडा यहां भी लगाने की कोशिश करी, बट ये लिक्विड की जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसके बारे में बात कर रहा है. ग्रेविटी कितनी तेज पुल कर रही है उसको, उसके बारे में बात नहीं कर रहा. Yes. ये थोड़ा ना पूछा था by how much force is the gravity pulling the water. No, he didn't ask that. Yes. That's why. He asked hydrostatic force of the liquid. Any doubts in your mind now? No, it's okay. हाँ, ठीक आ गया दिमाग में, बिल्कुल फिट, राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Yeah. ऑलराइट, लेट मी जस्ट ओपन. ये बार बार पीडीएफ खोलना इज अ phenomenal thing. Okay, let me just
So now there's a capillary question, 18th. Yeah. The water is closed and closed length of the. Okay, so this looks like a bit complicated type of question. है नहीं, थोड़ा सा complicated लग रहा है ये. Hmm. Just copy it. हो क्या रहा है पहले तो यही समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट. How do I copy this यार? Wait. एक मिनट. Return. बताना जब कॉपी आपको दिख जाए उसकी तरह. Let me read it. By inserting a capillary tube up to a depth, the water rises to H. If the lower is closed inside water. बंद कर दी. Lower end, I By guess. inserting a capillary tube up to depth in the water rises to height H. If the lower end of the capillary tube is closed, क्या मतलब है इसका? Closed inside water मतलब हाथ डाल के बंद कर दिया. And then the capillary is taken out and closed end is opened. Hmm. Seal डाल दी. 2H. Forget it. We have to worry about the concepts we know about capillary. So if we put our finger down below, what are we doing? Yeah. ये समझने की बात है ना कि फिंगर डालने से क्या हो जाएगा. वाटर राइज हो गया. No more और water can go inside the capillary. तो सरफेस टेंशन ने उसको ऊपर खींच दिया. हाँ. लिक्विड अंदर चला गया. हाँ. अब पानी फंस गया अंदर क्योंकि सील है नीचे से बंद कर रखा आपने. हाँ. चेंज क्वेश्चन. अगर आप इसको बाहर ले जाओगे तो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं इसके अंदर. हम्म. एडहेशन तो होता ही है. बेसिक कॉन्सेप्ट तो एडहेशन का ही है, राइट. पानी ने तो जो शीशे का वो जो है कैपिलरी ट्यूब इसको पकड़ के रखेगा. Yes. शीशा जो है पानी को पकड़ के रखेगा. और क्योंकि आपने नीचे से खोल दिया तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है. तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है. मतलब मैं कैपिलरी को जब डुबोता हूं तो सरफेस टेंशन की वजह से वो जो हमने रूल याद करा हुआ है 2t cos थीटा वाला, इट गोज अप एंड देन वी सील इट एंड देन वी टेक इट आउट एंड वी ओपन इट, राइट. हम्म. तो अब ऊपर जो है वो तो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वो गिर नहीं रहा पानी क्योंकि वो एल इज ग्रेटर देन एल से इसका क्या लेने देना है. सो माय माय अंडरस्टैंडिंग इज ये जो है लेंथ ये गलत है. इसका कोई लेना देना नहीं. वंस यू टेक इट आउट, व्हाई शुड वी वरी अबाउट द डेप्थ ऑफ द वाटर टम्बलर. Yeah. उसकी क्यों, मतलब व्हाई आर वी वरीड अबाउट दिस. जीरो भी नहीं है क्योंकि द adhesion will keep the water intact. Hmm. adhesion तो नहीं गया ना. Yes. डबल हो जाएगा किस खुशी में.
आपने एयर में एक्सपोज कर दी कैपिलरी और खोल दी, दोनों साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस हो गया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैपिलरी of atmospheric pressure Hmm. once exposed, right? So the liquid, for example, is here. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास के बीच में एडेशन है। तो एक तो ग्रेविटी है इसके ऊपर, एक Hmm. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे हो गया क्योंकि खोल दिया आपने। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स once you open your finger also, right? So Okay. adhesion will, my question is, adhesion is there, but एक सेकेंड, somebody is calling me. Oh, अच्छा। If there is adhesion, will adhesion be able to retain it or will it fall? It will retain it. How do we know this ना कि मतलब वैल्यूज नहीं है मेरे पास कहने के लिए कितना वेट है। Hmm. तो adhesive is there, but this general knowledge that adhesive forces is greater than cohesive is known to me, है ना? Hmm. नहीं, by the way, when the capillary rises, it rises against gravity. Yes. So तो जब आप चढ़े भी थे तो भी तो आपने ग्रेविटी को हरा दिया था, नहीं तो Yeah. चढ़ते कैसे? So you were definitely greater than adhesion, but you were also greater than gravity. That is why you climbed. Otherwise, you would have not. And so if we hold the same logic, then adhesion is still greater than gravity, right? Yes. So answer will be 4, which means the length of the tube will remain the same because there is no pressure तो दोनों तरफ से खत्म कर गया, वो तो खुल गया ना अब तो pressure is same. It does not depend on this. जीरो का क्या मतलब है? ये तो डिस्ट्रैक्शन है। ये बताने के लिए है कि पानी बह जाएगा, राइट? Hmm. जीरो के व्हाट इज जीरो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम? क्या मतलब है इसका? मतलब पानी निकल गया ना। दैट हाँ. मीन्स ग्रेविटी लॉस टू अडेशन, सॉरी, ग्रेविटी वन अगेंस्ट अडेशन। तो Gravity. नो वाटर, तो ये भी गलत है। पानी चढ़ा ही क्या था ऊपर जब शुरू में टम्बलर में हमने डाला था? तो पानी चढ़ा कैसे था अगर ग्रेविटी से ज्यादा नहीं था ये तो? सो इट वन अगेंस्ट द ग्रेविटी, इट क्लाइम्ड। सो दैट लॉजिक प्रिवेल्स, ग्रेविटी को तो हरा दिया है। अब बाहर निकाल के बस सील इसको ऊपर करा, फिर दोनों साइड से खोल दिया, प्रेशर दोनों तरफ बैलेंस्ड है, सो द हाइट रिमेन्स एज इज। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इट But विल the स्टे इन answer इक्विलिब्रियम। given is 3. नो, कैन नॉट बी 3। कोई रीजन ही नहीं, कोई रीजन है? No, in the answer key I saw. डोंट, नो नो, टेल मी द लॉजिक। लॉजिक क्या बोलता है? मतलब व्हाई इट विल डबल? आई डोंट थिंक सो इट शुड डबल unless you give me a valid reason. My answer will be 4. I will not go with answer key. My logic is strong, I think. You found my logic anywhere faulty except for the key. और कौन सी फोर्स होंगी जो डबल कर देंगी इसको? I see no extra force being applied on this. There's a upward force which is surface tension. It stays because it is between the materials, and that force will balance the weight.
उसने वेट को बैलेंस कर रखा है, उसको डबल जाने की क्या जरूरत है? So is the answer ki wrong then? Yes, I will not agree to an answer just because it is there, but I will go with the logic. All Okay. right. मतलब कोई फायदा नहीं ना, मतलब एंडलेस है फिर या तो हम भूल जाएंगे, हम किसी हमें कोई कॉन्सेप्ट आता है फिर आंसर ही आंसर है। Hmm. So let's not get carried away with the answers. My logic is very clear. 45. What? Okay, 45 or 30 degree to the vertical, right? Yeah. 30 डिग्री वर्टिकल, ये क्या मतलब है इसका? क्या क्वेश्चन बनाते हैं ये? इट गोज वर्टिकल यू मीन? वाटर राइजेस इन कैपिलरी अप टू, The capillary is tilted to 30 degrees from vertical. तो उसको सेम हाइट मेंटेन करने के लिए ऊपर तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि टिल्ट करने से Hmm. it is not able to maintain its h, h/√3/2। cos 60 कितना होता है? वो तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, 4/cos 30, इट विल हैव टू कैलकुलेट। मतलब हमें लेंथ ऑफ द जो वो रखनी होती है, वाटर जो ऊपर जाएगा, वो तो सेम ही रखना है ना, जो जो है। अगर आप उसे टेढ़ा कर दोगे तो जो लेंथ ऑफ द वाटर जो ऊपर जाएगा, वो नहीं कम होगा। वर्टिकल हाइट हैज टू बी मेंटेन्ड। सो अगर आपने कैपिलरी ट्यूब को, यू हैव केप्ट इट, इफ यू कीप योर, सॉरी ये कैपिलरी ट्यूब थोड़ी ना, सॉरी, वेट, सो if you're a capillary tube like this and you are made to tilt, sorry ये पानी यहाँ क्यों आ रहा है? If you tilt it like this, right, Yes. 30 degree with the vertical, right, तो ये 4 सेंटीमीटर है। अगर आप उसे टेढ़ा कर दोगे ना, तो ये वर्टिकल हाइट इसको सेम मेंटेन करनी है, जो है एच। एच नहीं चेंज हो सकता, दैट मीन्स यू कांट गो डाउन। सो द ओनली वे इज टू डू दिस। तो जो आपका पहले था एच, ये वाला एल, Hmm. वर्टिकल हाइट जो थी 4, क्योंकि एल कॉस 30 जो है, उसको आपको कितना रखना है? ये बेस है ना, देखो ये बेस है। Hmm. नए ट्राइंगल का तो बेस यही हो गया ना, ये Yes. नया ट्राइंगल है, राइट, दिस इज योर न्यू ट्राइंगल। ये न्यू ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो अगर इसकी लेंथ एल है, तो वो जो इसका एल कॉस 30 होगा जो कंपोनेंट, वो 4 ही रहना चाहिए। आया समझ में? Hmm. क्यों? वाई एच शुड बी द सेम, कैन यू टेल मी? क्योंकि उसे अपनी जो उसकी फोर्सेस हैं वो तो मेंटेन करके रखने हैं ना। रुको, एच का क्या फॉर्मूला होता है जो हमने डिराइव करा था? 2t/cos θ। 2t cos θ, राइट, Yes. डिवाइडेड बाय रो जी आर। Yes. इसमें कहीं लिखा हुआ है कि द एच इज गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ द वे यू इंक्लाइन द कैपिलरी? नहीं ना, इट इज इंडिपेंडेंट। एच रिमेन्स एच बिकॉज एच इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस टेंशन, आपने नहीं बदली। Hmm. एंगल ऑफ कांटेक्ट आपने नहीं बदला, डेंसिटी नहीं बदली, ग्रेविटी नहीं बदली, आर नहीं बदला, राइट? Hmm. Yes. कुछ भी नहीं बदला आपने।
तो एच क्यों बदलेगा? अगर आपका अगर आपने टिल्ट कर दिया तो भी एच नहीं बदलेगा। तो वर्टिकल हाइट ऑफ द पानी जहां जहां भी हो ये, राइट, ये तो निकाल ही सकते हो आप, एल कॉस 30, राइट। एल कॉस 30 अगर आप निकालोगे तो वो तो मैंने ये निकाल लिया ना, एच। आई वॉन्ट एल कॉस 30, ये दिस इज माई एल, and this is my vertical component of the capillary. This in any way has to be h, कुछ भी कर लो आप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यस। या कि ऊपर से जा रहा है? नहीं आ रहा है, समझ आ रहा ओके, आगे बढ़ सकते हैं। है। यस। लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। क्या भेजा फ्राई क्वेश्चन है ये। हैव यू सीन अ वर्टिक, लाइक इफ यू टेक कोल्ड ड्रिंक, स्ट्रॉ डालोगे तो आप देखोगे कि स्ट्रॉ में ना कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। हाँ। अब क्या करो, उस स्ट्रॉ को ना थोड़ा टिल्ट करके 30 डिग्री पे घुमा दो, हम्म। और एक निशान बना लो उसके अंदर कि पहले जब सीधा स्ट्रॉ रखा था तो पानी कहां तक है, यस। हाइट में। फिर स्ट्रॉ को टेढ़ा कर दो, हाँ, और वो पानी जैसा भी होगा उसकी हाइट देखो कितनी है, सेम रहेगी। सेम रहेगी। हाँ। मे बी यू कैन कीप अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टू डू दैट, यस। है ना। या। तो अवर लेसन लर्न इज, इफ द कैपिलरी इज टिल्टेड, the vertical rise of the water still remains constant, water या liquid जो भी है, हाँ। right, but the length of the water column may increase। ये L बड़ा हो सकता है लेकिन उसका L cos 30 सेम ही रहेगा, स्लांट बड़ी होगी ना ये। ये। this will हाँ। be more, this will be bigger, got it। यस। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। फिर से खोलो पीडीएफ, दिस इज रियली 10वीं बार। ओके, ओहो, ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है अगले में। हाँ। लिक्विड है ये, असेंडिंग नहीं है ये। और कॉन्टैक्ट एंगल इज 180 डिग्री। प्रेशर निकालना है, मेनिस्कस दिया हुआ है। हाँ। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सो एंड सो, पी नॉट। तो हाउ डू यू एनालाइज दिस, जो मेनिस्कस के दूसरी साइड पे प्रेशर होता है। तो ओके, तो कैपिलरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो, सॉरी, इसके अंदर हमें कैपिलरी की चिंता नहीं, कि हमें इसमें जो कर्व्ड सरफेस की साइड पे जो प्रेशर ज्यादा होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, राइट। सो हाँ। वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ड्रॉप वाला, 2T/R। और हाँ, तो टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये सेंटर जो है इनसाइड द लिक्विड, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर है, राइट, कनकेव साइड पे। यस। हाँ, ये तो पता ही है हमें। तो वेट, तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर है, 2T/R। फिर तो प्रेशर इज हायर, राइट, एट हाँ। ए। तो अगर मैं इन दोनों का इसका प्रेशर लिख दूं P,
सो PA माइनस P0 एक्सेस प्रेशर कितना हो गया? सो PA कितना हो गया इक्वल टू? 10. ये तो मेरे ख्याल से फॉर्म, ये इसमें वो हाइट का कोई फंडा नहीं था, इसमें जो एक्सेस प्रेशर वाली साइड है उसका फंडा था ये। मतलब जिस भी तरफ Wait. सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे कर्वेचर ये है, तो सर्कल तो ऐसे बनेगा ना, कर्वेचर इतना सा हाँ. पार्ट है ना उसका, तो उसका सेंटर तो यही होगा ना अंदर की साइड पे। अगर कर्वेचर ऐसे होगा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो एक्सेस प्रेशर इस साइड होगा। उल्टे केस में हाँ. एनी डाउट्स इन योर माइंड? भाई सोच में पड़ गए? No, no, it was good. क्लियर, राइट? स्ट्रेट Yeah. फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट शुड आई से, नॉर्मल सिनेरियो जो होता है हमारा। ये मुझे क्वेश्चन उसका लग रहा है, अगला जो है, ये कैपिलरी और उसका तो नहीं है, ये तो वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट? हाँ. ये तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, इतना सा पार्ट है, वो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो होता है, दैट प्रोवाइड्स द बॉइंट फोर्स, राइट? तो अगर आपका एक वॉल्यूम, आधा अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड करा है आपने, तो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ वो V/2 हुआ। हाँ. जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस फिर V/2 हुआ ना, आधा डूबा है तो। हाँ. लिक्विड की डेंसिटी R लिक्विड होती है, और V ρg, right? So that is a weight of the, this is the buoyant force which is available to you, sorry. So the buoyant force has to support the weight of the, what is this G/3? Okay. Accept. So, so what happens, ये जो G/3 होता है ना, ये जो भी जैसे अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन लॉ में इसको कैंसिल करना होता है, माइनस, ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है। सो फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, यू आर ऑन अ ट्रक, राइट? Okay. देयर इज अ, you are a passenger here. Now the truck is accelerating with 2 meter per second square. If the truck suddenly stops, what will happen? Of like You will, forward. forward, right? That is inertia, हाँ. right? So अगर आप देखो ये जा रहा है, तो हम मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेके जा रहे हैं। नाउ दिस, मतलब जो फोर्स यू फील बिकॉज यू आर ऑन एन एक्सेलरेटेड, लेट मी मेक इट स्लाइटली मोर इजी, जैसे लिफ्ट के क्वेश्चन होते हैं ना, the lift is going up with the acceleration of 2 meter per second square. You're a man here who's standing here, right? So the lift is going up. एक आपके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, ये यहां weighing scale है, right? Question is what is the weight here? Yes. Now, since you're on a frame, since you are on a frame which is non-inertial accelerating frame, so ऐसे frame को जो gravity से भी ज्यादा, मतलब इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग फ्रेम और non-inertial frame. So the way to solve this is, normal case में the weight is mg. Now this person apply another force here, ma, reverse of the non-inertial force, to make its जो inertial frame की जो extra acceleration है, वो न्यूटन्स लॉ में अलाउड नहीं होती लगाना। न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन के लिए उसे न्यूट्रलाइज करना होता है। सो दिस विल बिकम mg and another downward force on it. This is the net force being experienced if you are in an accelerating frame. So your measurement will go up, Yes. right? So ये जो going up, going down होता है, इसमें जब acceleration ऊपर की तरफ जा रही है, that is a net force he is talking about. When the whole system accelerates upward, the fraction of the block immersed, न्यूटन्स लॉ भी मिक्स कर दिया इसके अंदर, okay? So you're accelerating. Normally, I would have applied V rho G is equal to point force, but now you're going up. That means your extra weight
which I'm supposed to carry now is not mg plus but mg by 3, because I'm going up to neutralize this. I have to apply extra, right? So my effective weight is not mg but mg plus mg by 3. हाँ. So I am v rho g plus v, and this is the density of the solid. यही हुआ ना, मतलब जो मैंने अभी पढ़ा था हाँ. भाई, मेरे को जो फालतू एक्सेलरेशन फ्रेम में मिलती है उसको मुझे नीचे वाली डायरेक्शन में लगाना है। तो मेरा नीचे तो वेट था अपना, प्लस क्योंकि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में था तो मैंने उसकी डायरेक्शन उल्टी करके आई अप्लाइड फाउंड दिस आल्सो, राइट? दिस Yeah. इज v by 2 into rho liquid into g. What is the shape of this here? It's a cube. It's a cube. क्यूब का मतलब हो गया Cube. a cube, राइट? हाँ. यार डेंसिटी नहीं दी हुई है, ये समझ नहीं आया मुझे, लिक्विड की डेंसिटी और यू टू फाइंड, अच्छा लीक, अच्छा नहीं, लिक्विड की डेंसिटी अभी भी नहीं पता। द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक immersed in the liquid will be, नहीं ये मेरे ख्याल से द फर्स्ट सिचुएशन इज दिस व्हाट वी कैलकुलेटेड नॉर्मल। सो हम्म. v/2 शुरू में था रो जी इज इक्वल टू, क्या निकालना था? बॉइंट फोर्स हो गई, राइट? सो ये वाटर डिस्प्लेस्ड है, ये लिक्विड की डेंसिटी है, और ये हो गया मेरा इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक वी रो जी। दिस इज Yeah. सॉलिड। नाउ व्हेन आई गो अप विद लॉट ऑफ, तो मेरा अब जो फ्रैक्शन है बदल गया, मान लो नो लॉन्गर v/2, आई डोंट नो व्हाट, हाउ मच इज इट, राइट? सो लेट्स से इट्स x, it is v by n into rho g, right? So the buoyant force, okay, so v by n is the fraction which is immersed now, and the, let me write it bit neatly na dono situations ko. So I was v is the volume of the liquid displaced. Initially liquid gravity is equal to the weight of the box, so v rho solid into g. This is situation number 1. Yes. And now you are, you don't know how much you're in, आपने कितना उसको डिस्प्लेस करा है, रो ये इतना लेकिन आपको मालूम है, बट नाउ यू आर वी रो सॉलिड जी प्लस जी बाय 3, है ना? हाँ. Because you have extra, you no longer g but you're going up, so the net impact is I have to neutralize it, so I'll add g by 3 in opposite direction, which is the direction of the gravity. तो अगर मैं Yes. इसको डिवाइड करूंगा, I will get n/2 is equal to 1/4/3. So n is equal to 2 into 3 is equal to 3/2. My God, ये गलत नहीं आ गया? उल्टा आ गया यार ये। Let's redo this. If I go up with an acceleration of g by 3 and I have to reverse it. Oh, sorry. This should be g minus g by 3. G, I have to subtract the extra acceleration. Wait. ये क्या कर दिया? अगर if you're going up with an acceleration of +2 meter per second square, so your real acceleration, which is to be adjusted, is -2. Upward direction is positive. Downward direction is negative. So आपकी जो नीचे थी 9.8 minus जो भी आया g by 3. So let me just recalculate it. If I do this, what will happen? n/2 is equal to 2/3. क्या है यार? Is it correct? If I apply this, here is a catch. Have I applied it? If a lift goes up with an acceleration, and do we take it minus or plus?
in the pseudo force. माइनस लेते हैं, उल्टा कर देते हैं उसको. So v by 2 था, और why is it, if I take mg plus mg by 3 लिया तो 4/3 आ रहा था ना हमारा. नहीं, हाँ, 4/3 is not a choice. This or this. कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही? v/2, पहले मैं v/2 था, लिखा है द फ्रैक्शन इज हाफ. हाफ. Okay, so I am immersed half, and my weight is getting balanced. So I am the weight, and now this is the buoyant force available to me. This is the weight I need to handle. This is the new buoyant force available to me. My weight now, however, is decided by the accelerating frame. If I divide these two, I get n/2 is equal to 1 upon n/2. v/2 upon n/2 is equal to rho. This is 1 upon, so 2 gets cancelled. So n is equal to 1/3. नहीं, 3 आ रहा है ना फिर तो. हाँ, नहीं, 3. नहीं, should be then. I think मेरे को ये, let me just recall. The lift goes up, it should be plus. Why should be negative? But 4/3 क्यों ऐसा आएगा? प्लस ही होता है वो. g plus a होता है अपवर्ड. फिर कैंसल इट. ठीक लिया था वो, अननेसेसरली चेंज कर दिया. डेंसिटी भी कैंसिल हो गई. वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, बॉइंट फोर्स मुझे मालूम है, रो एक्स वी जी. बट इनिशियली भी पता है मुझे. कैन वी रीराइट दिस क्लियरली? एक सेकेंड, लेट मी रीराइट दिस. तो my buoyant force earlier was v/2 rho liquid multiply by g is equal to v rho solid into g. This is a weight I'm supporting using this much buoyant force. Now I don't know what fraction of volume is gone. Okay? So I say let it be n times. I don't know the fraction. Okay, so rho liquid. हाँ, आंसर आ तो गया था. They were so stupid यार. We divided it by n. N. It was 3/4, I think. हाँ, नहीं, it was 2/3. 2/3. 2/3. वो एक्चुअली क्या था, वो n नीचे था ना, वो 1/n निकला था. हाँ. n is equal to 2/3. Yeah. So I think this was frivolous. I just changed it because I lost track. ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, प्लस ही होता है. जब ऊपर होते हैं आप, तो वेट के साथ आपकी mg+a करा जाता है. ठीक करा था मैंने. हाँ. ग्रेविटी डाउनवर्ड है, प्लस a कर देते हैं. बट आई लॉस्ट ट्रैक. मुझे लगा वहीं गलती होगी, तब ये नहीं रियलाइज करा. अगर यहाँ में एन वी लिख देता ना यहाँ पे, हाँ. तो मेरा आंसर आ जाता. मैंने इसको क्योंकि v/n कर दिया ना, तो एक्चुअली फाउंड 1/n. Yes. स्टूपिड है नहीं है. एक आध स्टूपिडिटी अलाउड है यार, चलता है. ओके, नाउ लेट्स से, ये भी अगला भी वही लग रहा है मुझे. हाँ, similar. इट्स अ हॉलो वन, राइट? ओके, इट्स हॉलो, पर है तो आर्किमिडीज का ही. Is there any faster way to do this question that विच वन? फास्टर नहीं, कॉन्सेप्ट है सेम, तो कोई कभी भी नहीं आएगा. मतलब वो g+3 करना पड़ेगा, बाकी तो कुछ कुछ नहीं है भाई. g/3 का तो समझ होना चाहिए ना कि ऐड होगा. यस और नो? am I audible? या यू, आई लॉस्ट यू, आवाज नहीं आ रही थी. हाँ, मुझे भी नहीं आई. I wanted to say, is there a faster way to do this question that we just now did? फास्टर क्या होगा मतलब इसमें?
एक ही some कॉन्सेप्ट यूज करा कि जो इफेक्टिव वेट आपको हैंडल करना पड़ गया वो G+A का करना पड़ गया, राइट? हाँ G+G/3। yes mm, आई एम नॉट श्योर व्हाट कुड बी अ फास्टर वे। आई मीन कॉन्सेप्ट मैं तो यही लगाता कि मतलब आई हैव अप्लाइड बेसिक्स की बॉइंट फोर्स इतनी अवेलेबल है, इतना वेट हैंडल करना है। अब बॉइंट फोर्स इस फ्रैक्शन से निकाल लो, नए वेट को हैंडल कर लो। हाँ point is correct too मतलब उसमें भी कोई टाइम बचेगा नहीं। मतलब एक यही हो गया ना कि कितनी एक्सेलरेशन से कितना फ्रैक्शन में फर्क पड़ता है, हम्म, ये कह सकते हैं ना। हाँ कितनी एक्सेलरेशन से कितना फ्रैक्शन का फर्क पड़ता है। तो लेट्स से यू क्रिएट अ फॉर्मूला एंड यू से दैट द फ्रैक्शन विच यू विल यूज, डायरेक्ट मेथड फ्रैक्शन, जो पहले फ्रैक्शन था 1+A/G। तो पहले फ्रैक्शन जो भी था डाल लो, हाफ था। हाँ और ये एक्सेलरेशन कितनी थी? G/3। G/3 ये 1/3 हो जाएगा। yes तो ये लगा के देख लेते हैं आता है इससे। आ गया। सो यू कैन अप्लाई F इज न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्टार्ट फ्रैक्शन 1+ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जो पूरा कंटेनर है उसकी एक्सेलरेशन जो G/3 है, राइट? हाँ ये फास्टर वे है। बट ये तो बनाना पड़ गया क्योंकि आ, पता था कैसे करना है ना, जनरल फॉर्मूला बना लिया उसको। हाँ हमने तो V/2 ऐसे ऐसे करा था ना, लेकिन अगर फ्रैक्शन बदल जाए, if there is a new fraction, you say okay, the previous fraction was 1/3 and the lift is going up with G/4, तो ये बन जाएगा। तो नया हाँ फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा 5/12। एक yes लाइन में आ गया ना। हाँ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? yes yes तो अगर एक्चुअली हुआ ये कि व्हेन द, इसको कॉमन सेंस से भी अगर आपको टेस्ट करना है ना क्वेश्चन को, सो सो इफ यू आर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, if you're accelerating upward, what is happening? You are feeling heavier, हाँ क्योंकि आपका G+A हो रहा है ना वेट। yes तो यू आर फीलिंग हेवियर, इसका मतलब आप और अंदर जाओगे, हाँ भारी हो गए ना आप। yes तो और वाटर को डिस्प्लेस करोगे आप, हाँ करोगे ना। तो yes पहले आपने जो वाटर को डिस्प्लेस करा था, अगर मैं क्वेश्चन में वापस जाऊं, पहले हाफ डिस्प्लेस करा था, राइट? तो ये तो हो हाँ नहीं सकता, यू विल नॉट डिस्प्लेस इट इक्वली, राइट? जब आप हैवी हो गए तो सेम पानी थोड़ा ना डिस्प्लेस करोगे, ज्यादा डिस्प्लेस करोगे। हाँ ये भी, ये तो पानी कम डिस्प्लेस कर रहे हैं, 0.375। कम ये भी कर गलत है, ये दोनों तो गलत हो गए। ये पानी ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है और ये भी ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, चॉइस ये हो गई दोनों। हाँ दो एलिमिनेशन ऑफ आंसर्स भी तो हो गया एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में। इफ हाँ यू आर हेवियर, व्हाई विल यू डिस्प्लेस लेस देन 0.5? ये तो दोनों गलत है। यू विल नॉट स्टे 0.5, यू विल गो फर्दर डीप डाउन बिकॉज यू आर हेवियर नाउ, और नीचे डूब जाओगे थोड़ा। ये हाँ दोनों तो गलत है। अब चॉइस बची इन दोनों में, राइट? इसके लिए आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बिकॉज यू फील हेवियर, योर फ्रैक्शन विल इंक्रीज। हाउएवर, if your lift, instead of going up,
It Goes goes down. down. Then it will be lighter. You will feel lighter. If you feel lighter, then you will use A to be negative. Yes. And since you're lighter, you won't displace as much water. हाँ. सही है? हाँ, बिल्कुल. Crystal clear discussion? Okay. Yes. Listen. Good discussion. Because इसमें मैथ्स कम थी, वो हेवियर लाइटर ये हो गया ना थोड़ा, तो हाँ. वो थोड़ा सा फिजिक्स वाली साउंड करती है, फिर ये फिर दिमाग में बैठ भी जाता है, अच्छा ऐसा भी तो सोच सकते हैं, दिस दिस इज यूनिक वे ऑफ थिंकिंग. लेट मी जस्ट कॉपी दिस hollow something. You have already copied it. Just copied है, एक मिनट रुको जरा, let me just go back. This is the pain. Where is it? Where you have written the formula Right. F equals to F naught. नीचे. Okay, okay. अच्छा मैंने उसके साथ लिख दिया. So I'm rubbing this off, okay? हाँ. And with this logic, you can create formula for everything. You'll end up creating one formula for each question. बोले 10,000 फॉर्मूले याद करके आगे नहीं हमको. नॉट रिक्वायर्ड. गुड टू नो ट्रिक है, बट क्या क्या याद करेगा बंदा, नहीं? कई Yes. जगह यूनिवर्सल होते हैं क्वेश्चन, तो वो वहां हो जाए. एनीवे, सो hollow sphere has inner volume of so and so. Has inner volume half of the outer volume. Okay. A hollow sphere has inner volume. कैविटी है मतलब अंदर. हाँ, हो सकता है. इनर वॉल्यूम क्या है फिर? ये है. और आउटर वॉल्यूम ये है. यही हुआ. हाँ. So if this volume is V, then this volume is 2V. Yes. Now it is put in water and 4/5 of it is submerged. अच्छा. I don't Now like what? these submerged Hmm? questions. These submerged questions are not good. Submerged question. Anyway, complicated इसने figure बना दिए. This is just to make a fool out of us, nothing else. 4/5. देखो sphere जो है, all said and done, इसकी density होगी कुछ, right? And it is submerged 4/5 of its volume. 4/5 part is submerged. What does it mean? Part. When a sphere is submerged and you say 4/5 of its part, means 4/5 of the sphere is submerged. Yes. Okay. So which means whatever is its weight, 4/5 is some 4/5 of the weight is submerged. It's a hollow cavity. अच्छा, तो इसका जो वेट है, वॉल्यूम्स भी पता है, 4/5 भी है, 455. हाइट तो है नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व, तो ये बोलता है 4/5. So can I assume the weight of this, which is submerged, is 4/5 volume है? मतलब I'm saying 4/5 is by volume then. What is the total volume? 3V, right? हाँ. 4/5 of this is this much. है ना? Yeah. तो इसने जो वॉल्यूम पानी का हटाया, वो इतना हटा दिया. जितना सबमर्ज्ड है उतना पानी हटाओगे. Into 1000 into G. This is a buoyant force available to me. इसका अपना जो डेंसिटी है वो मुझे मालूम नहीं है, बट मुझे इसका वॉल्यूम तो पता ही है. हाँ. जी कट गया. हाँ. जी कट गया. तो रो कितना आ गया इसका? इक्वल टू 4/5 ऑफ वाटर.
Well, just let's think about it. So 4/5 is submerged means the buoyant force available is from the water is this much. Its Hmm. own weight is this much. टोटल वेट लूंगा ना मैं तो इसका टोटल मुझे सबमर्ज ये तो टोटल वेट है उसका mg. हाँ. Why we have taken 1,000 over first? This is see this thing is buoyant force coming from the liquid. So the volume of water which I have displaced is this much. 4/5 of 3v. Yes. लिखा तो है 4/5 पार्ट. आई एम अज्यूमिंग पूरा जो है उसका 4/5 वॉल्यूम जो है वो पानी को हिला रखा है इसने. तो वो. दिस इज वी वाटर डिस्प्लेस्ड राइट. दिस इज डेंसिटी ऑफ द वाटर. वी रो जी होती है ना buoyant force. This is density of water. This is volume of the water displaced. This is gravity. And what is it supporting? अगर इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो डूब जाएगा. ये तो सारी डेंसिटी ज्यादा आ रही है. समझ नहीं है मुझे. सो दिस हॉलो पार्ट इज इट्स एयर है मतलब इसके अंदर. हॉलो स्फीयर इनर वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम इट्स अ कैविटी. शेप क्या होगी. इट्स अ हॉलो स्फीयर विद inner half of the 4/5. सोचना सोचना पड़ेगा भाई क्या है ये. मतलब मेरे को तो लग रहा है 4/5 वॉल्यूम है. और कि पानी कितना अंदर से खोखला है या नहीं है डजेंट मैटर क्योंकि पानी को तो हटाना है आपने और 4/5 पानी को आपने हटा दिया है. एक सेकेंड एक 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 गलती हो गई है. वेट ऑफ द लिक्विड क्या निकाल लिया हमने. वेट ऑफ द मटेरियल. जो मटेरियल है उसका वेट तो सिर्फ ये है 2v. मटेरियल तो ये है ना मेटल का. हाँ. तो इसका वेट संभाल रहे हैं. इसका थोड़ा ना कोई वेट है तो खाली है. तो ये 2v लेना चाहिए था ना. पर वो भी कट ही जाएगा 2v से ऊपर. कौन से 2v से. अच्छा, वो 3v लेना है. वो 3 है भाई. वो तो वॉल्यूम है. वो हाँ. वॉल्यूम है वो वेट है. राइट साइड पे तो वेट तो इसका है ना ये. हम्म. नहीं. दोबारा राइट. सॉल्व करें इसको. तो 4/5 में 4/5 रह गया. 3 रह गया इज हम्म. इक्वल टू रो इंटू 2 आ गया. और एक हाँ. 1000 आ गया यहाँ पे. तो रो इज इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा ना ये. सो 6/5 हो जाएगा. 5 पॉइंट. कैलकुलेशन सही है दोबारा पढ़ो. 4/5 लेना था लिया. 3 लेना था क्योंकि वो टोटल का वॉल्यूम का 4/5 है लिया. राइट साइड पे मास जो है 2v का लिया. वॉल्यूम ऑफ द टोटल 2v. तो मास जो है 2v का ही लेना है सिर्फ 2v. रो सॉलिड ये वेट है. कैलकुलेशन में क्या है भाई. 2 नीचे आएगा. 2 2 6/5. 1.2 है ही नहीं चॉइस में. और तो नहीं. वे कांड नहीं करा हुआ कैलकुलेशन में. 4/5 इज ए मस्ट. जो वॉल्यूम लिया है सही लिया है.
जो वेट ऑफ द स्फीयर है आउटर शेल का वी है, तो मेरा जो टोटल, ये आई थिंक अजम्पशन गलत है हमारी। जो हम शेल को समझ रहे हैं ना, वो शेल ऐसे नहीं काउंट करना। लेट मी जस्ट रीथिंक अबाउट द, जो ये बोल रहा है, और ये एयर का नहीं लिया हुआ इसने, एक बार दोबारा सोच के देखते हैं। मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, दोबारा लिखता हूँ मैं इसको। डिफरेंट assumption नाउ। नाउ द assumption इज दैट, ये जो स्टेटमेंट दी है ना ये वाली, अब इसका मतलब शायद ये है कि जो पूरा जो बाहर है ना, ये बाहर वाले का जो है, मतलब वो जो है, ये वी है, और बाहर वाले का टू वी है। ये वी है, हम्म। वो पूरा बाहर तक टू वी है। तो जो हमें वेट लेना है अपना, जिसका हमने मास निकालना है, राइट, वो ये वाला है। पहले तो मैंने ब्लू वाले पार्ट का ले लिया था ना, जिसको अब मैं ब्लू कर रहा हूं। इसको हाँ। मैंने ले लिया था ना टू वी। अब मैं यहां तक टू वी ले रहा हूं। तो मेरा जो वेट बचा, जो मुझे बैलेंस करना है, वो टू वी माइनस वी का बचा ना। हाँ। मैं कह रहा हूं ये वी है यहां तक, दिस इज वी, एंड दिस इज टू वी। गॉट इट? यस। तो जो बचा, जिसका वेट हमें कंसिडर करना है अब, वो हो गया वी। वी। सिर्फ वी बचा। हाँ। वही मेरे ख्याल से अजम्पशन गलत थी हमारी, कि शेल की जो बाहर वाला मटेरियल था ना, उसको मैंने टू वी ले लिया आउटर समझ के। वो तो एक्चुअल मेटल ही था। ओह, हम्म। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, सो अर्लियर my assumption was that the metal, wait, able to write, हाँ, अर्लियर आई टुक दिस, जैसे ही मैं लिखता हूँ वो, थैंक्स। आर यू एबल टू सी The screen, yes. माय पेन? नो, आई थिंक No. मेरा कनेक्शन लूज है शायद। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड एंड जस्ट टाइटन इट अप। आई थिंक यहाँ से हो गया होगा। जनरली डजंट बॉदर दिस मच, इफेक्ट Now डज। it is there, I guess. आ गया? हाँ। हाँ, आ गया, आ गया। सो अर्लियर आई थिंक आई टेकन दिस, हाँ। गलत लिया। ये टू वी नहीं है मटेरियल, पूरा शेल जो था ना आउटर तक, वो टू वी है। तो अब तो वी हो गया ना सिर्फ फिर। सो हाँ। सो द पॉइंट फोर्स अवेलेबल टू मी इज 4/5। Into thousand. 4/5 Into. इंटू वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम, राइट, विच इज वी। अब तो टोटल वॉल्यूम कितना है? टू वी, सॉरी। 2V. हाँ, टू वी ये गड़बड़ हो रही है बार बार। टू वी इंटू 1000 Rho into V. इज इक्वल टू वी रो सॉलिड इंटू जी। अब ठीक लग रहा है मुझे, राइट? सो दिस विल बी 8/5 ऑफ 1000। 1.62 डेसिबल। 1 point. आई थिंक इतना, मतलब लैंग्वेज कैसी लिखते हैं, आउटर 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 शेल का और इनर शेल का लिंक था। मैंने पिछले में गलती ये कर दी, मैंने मटेरियल जो है ना, इसका आउटर शेल मान लिया, जबकि उन Hmm. दोनों का डिफरेंस था। कॉन्सेप्ट वाइज इट वाज फाइन, बट आई थिंक इंटरप्रिटेशन नॉट सो ग्रेट। एनीवे, ठीक है, क्लियर हो गया, राइट? Yeah. लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है।
There's a question number 13 in that only. Okay, this one. A boat with length वाला. हाँ. It sinks. The water हो गया, right? Water, right? So how much volume did you displace? You are 12 Weight of the man. into 2 into 0.3 by 100 is a volume, extra volume of the liquid displaced by the man. You became heavier and you displace this extra volume due to man's presence, right? This will Yes. be equal to mg. ये मैन हो गया, हाँ. ये तो वॉल्यूम है ना. दिस इज 12 meters. क्यूबॉइड, ये बोट है, एक्स्ट्रा इतनी सी डूबी है थोड़ी सी, राइट? हाँ. ये पानी डिस्प्लेस करा आपने, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑफ द वाटर. Yes. 0.3 को मीटर में कर दिया. ठीक ये 1000 ऊपर है बाय द वे, नीचे नहीं है. है. हाँ. डेंसिटी है ना. तो 24 इंटू 0.3, नहीं, 24 4 इंटू into 0.3. इंटू 3. हाँ. आंसर क्लियर. Oh yes. वन लाइनर था ये तो, स्ट्रेट फॉरवर्ड. कैसे घुमा घुमा के वो बनाने के लिए क्वेश्चन, विधि को हमने क्वेश्चन बना दिया. बना लो. ओके, द सिलेंडर टू सोप बबल्स नहीं करना को हमने करा था अभी. क्वेश्चन नंबर 13, नहीं, हाँ 13 करा था ना. 13 था. ओके, और दिस इज अ स्टैंडर्ड ट्रिक. जो डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. वैसे फ्रैक्शन जो डूबा होता है डेंसिटी की वजह से, ये वाला. सो जितना भी पार्ट डूबा हुआ है उसको एन ले लो. सो एन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी हाँ. balances the total volume into density of solid जी. into जी. g. तो ये जी जी कट गए, वीवी हाँ. ईवी कट गया, वीवी कट गया. तो हाँ. फ्रैक्शन कितना आ गया? इक्वल टू डिवाइडेड बाय रो लिक्विड. और अबव द सरफेस निकालना है, अबव द सरफेस. सो ही हाँ. सेइंग ऊपर बाकी कितना बचा, राइट? तो एन माइनस एन वी बाय वी. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो. 1 माइनस रो, सॉरी उल्टा लिख तो नहीं लिख दी, हाँ, रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड डिवाइडेड बाय रो लिक्विड. कौन सी चॉइस है? डी इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. बड़ा होगा ना डी. दिस फ्रैक्शन इज अबव. अगर आप 3/4 हो अबव, तो 1 माइनस द फ्रैक्शन आप नीचे हो, सॉरी 3/4 अगर सबमर्ज्ड हो तो बैलेंस आप ऊपर हो ना, 1/4. हाँ. 3/4 सबमर्ज्ड हो तो ऊपर कितना हो? 1 माइनस दिस, राइट? सो 1, ये फ्रैक्शन आ गया आपका, फ्रैक्शन विच इज सबमर्ज्ड. The buoyant force available is this much, NV. N is your fraction which is submerged. This is the weight of the block. So fraction which is submerged आ गया आपका this much. और आपका जो 1 माइनस रो सॉलिड अपॉन रो लिक्विड है, कितना आ गया? D माइनस डी नॉट बाय टी.
दिस वाज स्ट्रेट अवे बेसिक, मतलब लगाने को बोल रहा है। सिर्फ इतना निकालना है कि जो डूबा हुआ पार्ट है उसकी जगह जो डूबा हुआ पार्ट नहीं है वो निकालो, राइट? Hmm. एनी डाउट्स इन योर माइंड? No, it's okay. फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1 - n निकालने को बोल दिया इंस्टेड ऑफ ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इट्स अ गुड डिस्कशन, राइट? ये काफी कुछ जो डिस्कशन से आप कैप्चर क्वाइट अ लॉट। Oh my God, what is this question? Potential energy of water? Capillary potential energy? Okay, let's see if we can. Let me paste it. So on dipping a capillary, ठीक है? So it acquires a height and therefore it has a potential energy, right? हमने पढ़ा भी था. So it acquires a height and therefore it has a potential energy. The Now, question is not visible. Sorry. मतलब I have wait. The pasted one. Hmm. Now see, just follow me. Can you see now? No. No? Okay, let me just do it again. Yeah. आ गया? हाँ. So basically, he's asking you the ratio of height, right? Yes. Height ही तो potential energy होती है, और क्या होती है height? So if you know the radius has gone up, what will happen to the height? False. कैपिलरी की जो फॉर्मूले में है, रेडियस अगर 3 times हो जाए तो हाइट कितनी हो जाएगी? What is the impact? H is inversely proportional, right? False की proportion रहेगी. हाँ. So your height will become how much? H/3, right? H/3. That's your new potential energy, 1/3. 1/3. Any doubts in your mind? Height, पहली बात तो ये पता चल गया कि the rise in height is going to be less because the radius has gone up by 3 times. हाँ. सही नहीं है? So Yes. how can you say that, you know, the if the ratio of U1 and U2 निकालना है आपको, right? So U1 and U2. फॉर्मूला लगा लो, आप देख लो करके क्या आता है। इसमें तो चॉइस नहीं है 1/3 की। दैट हाँ. रेट 3R हो गया। That was what. The height is inversely proportional because of if you go up your you the energy gets stored in the form of, Potential energy. yes, so tricky question here. Okay, so let's say the height
why are we linking it to height? Okay, so understood. So I'm saying the height will become h by 3, right? Yes. This is the final, right? So how do we calculate potential energy? Delta final potential energy is usually na No, no, no. calculate. The potential energy जब हम निकालते हैं, gravitational potential energy, how will we? Uh, it is mgh. Yes. रूल तो वही होता है ना mgh का. तो हाँ. my now my mass is density into volume, right? तो मैं let me just do one thing. Let me calculate hr here because there is no work done, so the potential energy should not change. तो work done नहीं हुआ ना? No. हाँ. So how why will the potential energy go up? Just because the height is, so it will get, it'll appear in some other form. So मैं पहले लगाता हूँ रो डेंसिटी h, right? तो डेंसिटी तो वही रही लिक्विड की, कोई चेंज नहीं है. If I calculate the volume of a capillary, it will be pi 3r square into h, right? So density into हाँ. pi 9r square into h by 3 into gh. तो ये कितना आ जाएगा? 3 रो पाई r square h square g. लॉन्ग लॉन्ग एक्सप्रेशन. हाँ. mgh अभी कैलकुलेशन करके तो दिखा दी. इट्स अ हाँ. सिलेंडर, राइट? सो इट्स अ पाई r square h. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी. दिस इज द डेंसिटी. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मास. हाँ. निकाल दिया. इंटू जी एच. सो into GH. हाइट कितनी है कैपिलरी की जो है? h बाय 3 ले ली ना? हाँ. और सॉरी, ये भी h बाय 3 है जो हाइट है, राइट? तो ये 3 भी गया. हाँ. ये भी 3 है ना? एक बार पढ़ लो इसको ध्यान से. एनी डाउट आस्क मी. सो No. रो mass is density into volume gh. Yes. एनी डाउट्स? पाई आर स्क्वायर एच लगाया, हाइट हाँ. एच बाई. अब मैं यही चीज यहाँ पे लगा रहा हूँ बिकॉज आई हैव नॉट डन एनी वर्क एक्चुअली. व्हाई विल द एनर्जी चेंज? एक्सटर्नली कुछ करा नहीं मैंने कि कोई वर्क डन कर दिया. लेट मी डू एम जी एच हेयर ऑल्सो. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना आया? नो चेंज. सो gaining or losing height does not impact the potential energy because the volume of the liquid, right, takes a different twist. So the ratio of the uh, for potential energy is just not a function of mgh, क्योंकि r और h उसमें लिंक्ड है आपस में. जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं mgh का, उसके अंदर हाँ. एक्चुअली if you solve this you find that in both you have r square and h square coming, right? Yes. So potential energy actually is a function of r square h square, not h. तो जितना आप r को 3r करोगे, हाइट को भी तो ये कर देते हो फिर. तो होता हाँ. क्या है उससे? जो 9r आपको एडवांटेज मिली वो लूज भी तो हो गई. Yes. खत्म. हाँ. सो योर आंसर इज 4. One by one. हिडन क्वेश्चन, राइट? Yeah. You say, okay, um, the first thought that comes to mind is that the height has gone down by h by 3. So therefore, u1 by u2 is mg h1 by mg h2. काट दो. नहीं,
हाँ, एक्चुअली ये जो चीज है, ये वाली, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें आर स्क्वायर आ जाएगा और एच स्क्वायर बन जाएगा ये। और जब ये कटेंगे तो ये वन ही आ जाएगा। हाँ, दिस वॉज रियली गुड। हम्म, इफ यू एनालाइज इट, यस, what is happening is your height has fallen. Your height has fallen, right, because of the increased radius, but your volume has gone up. हाँ, So whatever you gained, is also loosed. you lost. Yeah, Yeah. exactly. Because आपने हाइट गेन करी, वॉल्यूम बढ़ गया आपका। रेडियस, जो आपका हाइट गिरी थी, उससे रेडियस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि आर स्क्वायर में आता है वो। तो हाइट गिरने का और रेडियस बढ़ने का कोई जीरो इम्पैक्ट आया आपके ऊपर। It actually was dependent on r square h square, not on h only. Yes. ये तो मतलब घुमा दिया है इसने। हाँ. बहुत ही मतलब अंदर जाके पूछा है क्वेश्चन की। कैपिलरी फॉर्मूले के अगर भरोसे बैठ जाओ तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r and बाय। बट क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी। द ओनली थिंग दैट स्ट्रक मी वाज कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब some work has been done. I mean, either you have lost energy or you have gained energy. कोई एजेंट नजर नहीं आ रहा था which will cause this. Hmm. Okay, tricky one. So that was googly, हाँ. कह सकते हैं गुगली थी भाई। बड़ा ही इनोसेंटली पूछ लिया था कि डिप कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट से ही दिमाग में आया इंप्रेशन, ये भूल गए कि वो आर स्क्वायर एच स्क्वायर एक्चुअल छुपी हुई इसमें जो कहानी है। So if you do this calculation actually, what is happening? पहले केस के अंदर your volume is pi r square h, right? दूसरे केस में you are, right? हाँ. So although your height has gone down, your radius has gone up, but in fact your volume जो है it increases. Yes, right. अब जब ये उसमें कन्वर्ट होगा, ये उसमें अपना पोटेंशियल एनर्जी में जब एक्स्ट्रा आ जाएगा वो h/3, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए लगाना पड़ता है ना मल्टीप्लाई बाय h/3। तो ये 3 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वॉल्यूम का, ये भी जाएगा। तो पहले स्टेप में आपका वॉल्यूम बढ़ गया था। अगर ज्यादा मास कम हाइट पे होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो हो जाएगी ज्यादा। Hmm. यही हुआ ना फिर। तो Yes. यू इंक्रीज द रेडियस, योर वॉल्यूम वेंट अप। You increase the radius, reduce the height, first your volume went up. Because you have more volume at lower height, the potential energy is same. Yeah. हाँ. है ना? Yes. अंदर की बात करें अगर कि क्या हुआ। हाँ. What is this question here? Horizontal tube increases as we move in the direction of the variation. This is not your अच्छा, ठीक है, because the area is increasing, right? So I'm just looking at the graphical question. Tell me if you see the question now. Yes, it is. Okay. So he's saying the tube is like a cone, right? इसका जो वॉल्यूम है वो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना।
बढ़ रहा है वॉल्यूम, लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है। सो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, जितना जितना x बढ़ेगा, सो a इज प्रोपोर्शनल टू x, तो a इज इंक्रीजिंग लाइक दिस kx। ये एरिया, ये ये एरिया निकालना है तो इसको फॉलो करो। a इज प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्टेंस, जितना x में जाओगे वैसे वैसे आपका एरिया आता जाएगा। यू हैव टू फाइंड द वेरिएशन, सो दैट मीन्स योर एरिया इज इंक्रीजिंग, राइट? हाँ. Linearly with it. So you have to depict the variation of pressure. So if you have more area which is increasing linearly, if the area increases, what happens to the velocity? What happens to the velocity if your area increases? It decreases velocity. Okay, so what happens to pressure? Increases. Yes. जैसे वो है आपका लीनियर चेंज हो रहा है, राइट? योर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और प्रेशर जो होता है उसका क्या बर्नौली का इक्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब में? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, Yes. यही होता है। हाँ. तो इफ आई राइट P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, हाँ. तो माय वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, यू जस्ट सेड राइट, बिकॉज द हाँ. एरिया इज इंक्रीजिंग। Increasing. तो इसका मतलब जो प्रेशर है, राइट, अगर मैं उसको उस साइड ले जाऊं तो इट इज कांस्टेंट माइनस हाफ रो वी स्क्वायर। एक्चुअली ये नंबर ना भी एग्जिस्ट करता हो अगर, तो मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू हाफ रो वी स्क्वायर Hmm. with a minus sign, of course, right? Which means if my velocity increases, my pressure will go down. That is what the negative sign tells me. If my हाँ. velocity goes down, my pressure will increase, and if my velocity goes up, my pressure will decrease. तो मेरा जो प्रेशर है आगे जाके, जहां वेलोसिटी कम होती जा रही है, बढ़ेगा। अभी हमने बोला ही था, राइट? सो हम हाँ. कह रहे हैं कि एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी और प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा. एरिया इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। हमें निकालना है पी वर्सेस एक्स का ग्राफ, लेकिन तो जहां पे इस ग्राफ को अगर देखें तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपका प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है? कम हो रहा है. तो गलत है ना ये तो। हाँ. ये तो एलिमिनेशन ऑफ आंसर्स हो गया। एलिमिनेट द आंसर्स, हटा दिया, एक आंसर हटा दिया। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो ये यहां पे प्रेशर ऐसे जा रहा है, देखो ये, और स्टेबल हो रहा है प्रेशर, राइट? हाँ. एक तरह से, राइट, स्टेबल नहीं हो रहा मतलब। अच्छा, ये दिखा रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देर इज अ प्रेशर, हम्म. बिकॉज देर इज अ वेलोसिटी, सो देर, बट इट इज एक्चुअली आई थिंक स्टैग्नेटिंग। दैट इज द फीलिंग आई गेट, मतलब जैसे जैसे आपका वो बढ़ रहा है, वेलोसिटी आपकी घट रही है, योर प्रेशर शुड गो डाउन, सॉरी, एज योर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग your Pressure pressure should should increase. go is. Yeah. And if I were to use this, area is linearly relationship है area का, and then I look at my area gets actually is velocity, तो मेरी जो एक्चुअल इक्वेशन आई है वो ये आई है, राइट, माइनस साइन के साथ। ये तो हमें पता ही था ना पहले कि प्रेशर इज एक्चुअली हाफ रो वी स्क्वायर, राइट, प्रोपोर्शनल हम्म. विद अ माइनस साइन। तो
प्रेशर और वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है स्क्वायर का? तो प्रेशर Yes. इज इंक्रीजिंग विद द डिस्टेंस. If the pressure, if I were to say that area is increasing linearly, right? कह सकते हैं. But Hmm. but is the pressure increasing linearly? No. It depends on square of a quantity. Cannot be linear. भाई अगर आपका एरिया बढ़ता जाता है लीनियरली, तो वेलोसिटी आपकी जो है वो लीनियरली नहीं चेंज हो रही, वो नॉन लीनियर है. बर्नौली थ्योरम हाँ. मैच करके देख रहा हूं मैं कि डिस्टेंस के साथ क्या होगा. Why the velocity decreases non-linearly? Use your common sense. Because a1 v1 is a constant. Yes. If and so what happens to velocity, right? Hmm. This is non-linear. This is linear, right? Linear. This is reverse. So हाँ. v1 is proportional to 1 upon kx. This is Yes. non-linear. ये कोई ऊपर थोड़ा ना आ रहा है एक्सिस में वेलोसिटी Hmm. का. और Hmm. प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू. One. Yes. Right? So pressure is actually proportional to Minus six. minus, right? हाँ. तो अगर ये ग्राफ देखो तो ये भी नहीं है. इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ये जो Limit. इक्वेशन है, इज इट अ स्ट्रेट लाइन? p वर्सेस x. No. नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो ये भी हाँ. एलिमिनेशन ऑफ आंसर कर सकता हूं मैं. हाँ. अब मेरी लड़ाई रह गई इसमें और इसमें. Hmm. राइट? ये जो मुझे लगता है ना, मतलब गट फील से बता रहा हूं मैं, अगर नीट के एग्जाम में बैठा होता ना, ये जो है ना, ग्रेजुअली जो है ना, दिस इज इसकी स्लोप बढ़ रही है लगातार. इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर है वो सही Hmm. जा रहा है. इट इज इंक्रीजिंग नॉन लीनियरली. जो ग्राफ नंबर 3 है, मतलब 1 है, हाँ. वो उसका हाउ डू आई एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ 1 एंड 2? 1 by intuition doesn't appear to be correct to me. But one is the answer. 1 is the answer. 4 appears to Yeah. be the answer to me. क्योंकि स्लोप जो है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग. इट्स अ नहीं यार, इट इज नॉट. इट इज नॉट. इट्स अ रॉन्ग आंसर. 4 is the correct. 4 is the correct answer for me again. एक मिनट, लेट मी जस्ट थिंक अगेन. सो ग्राफ नंबर 1, इसमें आप अच्छा ना. ओके, सो let me tell you Bernoulli, okay? Why I say this is not a good answer for me. बर्नौली ये बोलता है जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ रहा है. हाँ. और आपका जो फिर प्रेशर है वो मतलब बढ़ता जाएगा.
हाँ। ये वाली जो बर्नौली की जो बात है ना, ये मैच होती है इसके अंदर। ये आप नोट करो। सो इसकी स्लोप जो है ना, द रेट ऑफ इट्स इंक्रीज, द प्रेशर इज नॉट इंक्रीजिंग एज फास्ट as it should. Initially, P versus X, the graph is good. Then it lowers. Then it lowers. Whereas if I see this graph, the initial, say this slope, right? यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मतलब डीपी बाई डी एक्स की बात कर रहा हूं मैं, और फिर आगे और रेट बढ़ रहा है। सो एज यू गोइंग फार्दर, द प्रेशर इज चेंजिंग फास्ट विद small changes in x, which is Hmm. consistent with what Bernoulli says. Yes. मतलब ये कह रहा हूँ कि जो ग्राफ नंबर 1 है वो ये दिखा रहा है कि प्रेशर तेजी से नहीं बढ़ रहा, मतलब वेलोसिटी जो है वो कम होना, जो उसका कम होना है वो कम हो गया है। क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तभी तो प्रेशर बढ़ता है ना। तो इस हाँ। ग्राफ के अंदर आई कैन सी डिस्टिंक्टली कि द प्रेशर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विद द वेलोसिटी ड्रॉपिंग। तो टू मी आंसर 4 इज करेक्ट। इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दी है अपनी? नहीं, वो बस ऑप्शन नंबर होता है। ये कहाँ से उठाते हो? ये सर ने एक बार ये प्रैक्टिस शीट दी थी। ओके, क्योंकि मैथमेटिकली देखो मैं बर्नौली भी लगाता हूँ तो बर्नौली में है कि हर बार प्रेशर जो है इट शुड कंटिन्यूअसली इंक्रीज विद डिस्टेंस। ये तो मैंने निकाल लिया। वो ना जो ये वाली बात है ना कि द प्रेशर शुड इंक्रीज कंटिन्यूअसली, आई कैन सी इट हैपनिंग इन दिस ग्राफ, बट द हम्म। ग्राफ विच इज द अदर ग्राफ, मतलब मेरी पाइप वाइडर होती जा रही है, मेरा फ्लूइड जो है स्लो होता जा रहा है, तो मेरा प्रेशर बढ़ते जाना चाहिए ना, हाँ। कंटिन्यूअसली बढ़ता जाए फास्टर एंड फास्टर। तो स्टीप होना चाहिए, रेस शुड बी स्टीपर। 1 भी दिखाता है कि रेज हो रहा है, बट द रेट एट विच द इंक्रीज इज हैपनिंग इज नॉट गुड। हम्म। तो मेरे को भी मतलब बर्नौली से मुझे लगता है कि एनर्जी जो है, और अगर मैं वो उसको वी स्क्वायर को भी देखूं इक्वेशन को, वेलोसिटी और प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, उसमें भी देर इज नो स्कोप ऑफ पी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ विच इज दिस, मैथ से। वो बनाने आते हैं पैराबोलास? मतलब। पैराबोला बनाने आता है? यस। पैराबोलास जो अलग अलग टाइप के होते हैं, कैसे वो कनकेव अप कॉन्वेक्स अप होते हैं। तो जब हमने ये मतलब व्हेन वी डिसाइडेड ना कि द प्रेशर इज नेगेटिव ऑफ हाँ। माइनस के वी स्क्वायर, राइट? सो बेसिकली वी सेइंग वाई इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, -x², यस। राइट? इफ माई एक्स इज ओनली पॉजिटिव, तो जो मेरा ग्राफ बनाऊंगा अगर मैं एक्स पॉजिटिव है, मेरा वाई नेगेटिव आता जाएगा, तो मेरा वाई नीचे की साइड भी बनता है अगर, हाँ। उसकी जो ग्राफ बनेगी मतलब दैट विल बी क्लोजर टू द ग्राफ ऑफ increasing decreasing function. You won't know. How do we explain you understand concave shape, यस। curving upwards, हाँ। right? That is the equation we actually end up in this when we solve this question. ओके। मतलब अगर इसमें बर्नौली की इक्वेशन लगाओगे आप तो you will get this as a parabola which is concave up parabola.
That would be similar to fourth option. Yes, fourth 100% fourth है वो. It will not be downwards. Okay. It is not. क्योंकि ये जो आप P is inversely proportional to ये कर रहे हो, तो ये बेसिकली V जो है वो A से लिंक्ड होता है, और A से लिंक्ड वो P is linked to V and V is linked to A. So you are actually saying this equation जो हमने शुरू में करी थी ना, ये वाली. So this in no way will relate to this. Anyway, it's very difficult to do it mathematically, but this is closer to the reality. This is outright wrong. If somebody has an answer, get me the answer. I would like to listen to the argument. जिसने भी Okay. दिया था वो है भी. हाँ सर ने दी थी शीट, तो आई हाँ, मे बी. तो उसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, सोल्यूशन नहीं है, उन्होंने क्लास में अनाउंस कर दिए थे नंबर, ऑप्शन नंबर. नहीं मतलब कोई समझाएगा तो सही ना, कि भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि. इट वाज काइंड ऑफ अ टेस्ट तो लाइक. क्या हो गया यार, टेस्ट में भी तो आंसर तो देते हैं ना. हाँ. हर हर क्वेश्चन का तो आंसर बच्चे को तो पता होना चाहिए ना, उसे सीखा कि नहीं सीखा. अनाउंस हम्म. का क्या मतलब होता है? अनाउंस, व्हाट इज अनाउंस भाई? व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ दिस? नथिंग. Answer is fourth. Don't go with the answer unless somebody can contradict. Anyway, the question is too tough for NEET examination. Drop it dead. It's not a NEET question. ओके. हाँ जी, नेक्स्ट. इसमें बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट हुई है, विच इज रिवर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ coalescing, right? हाँ. Agreed? So you have actually ended up increasing the energy, surface energy. तो हर एक छोटे ड्रॉप की वो निकाल लो, सरफेस एनर्जी. और जो जहां से निकल रहे हो वहां पे कंटिन्यूटी की इक्वेशन लगा दो. लगा पाओगे? हाँ, आई ट्राई. नो, थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट. इज दिस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्वेश्चन, और इज दिस वन वन बिग ड्रॉप क्वेश्चन? कंटिन्यूटी आई गेस. बिकॉज द ड्रॉप छेद में से निकल रहा है ना, विद वेलोसिटी एंड ऑल. हाँ. तो नंबर. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में तो ए इंटू वी लगाना होता है, राइट? सो इफ यू हैव अ बिग volume, a big drop which is coming out, then it is pi r square v. हाँ. वही होता है ना, और क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर वी. बड़ी ड्रॉप निकली, और हम्म. वो v1 इंटू एन ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई. v1 हर एक की वेलोसिटी, हाँ. विच इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन. तो इसकी v तो दे रखी है, तो v इंटू क्या हो जाएगा? n इंटू पाई आर स्क्वायर. या. n इंटू पाई आर स्क्वायर लगा लो, और yeah, okay. So, so there is no formation of a drop or a bubble in this question. जो उसमें होता है कोएलेस हो जाते हैं जिसमें. हाँ. तो क्या आंसर आएगा इसमें? We solve this, we will get pi gets cancelled, right? So r square v. ये आ गया. एंड. ये हो गया ना.
Hmm. So it's not a, if you throw something out of a pump, the impression I carried was कि the drops छूट रही हैं तो सरफेस एनर्जी का. Yeah. Okay. I think fairly straightforward. All right. अगर आपके ड्रॉप्स बाहर निकल रही हैं, नीट 2016. Okay. So you are two non-mixing. The height of each liquid is okay. The solid cylinder is density D is put in this container. अच्छा. And length is so and so. The density D is equal to. You have to find the density of the cylinder, right? It. So there are two non-mixing liquids. They don't mix with each other. Okay, so this is n times rho. Okay, so the dense liquid goes down, and there is another liquid here. So there is a cylinder that rho L. What is rho L? Length rho PL. P is less than 1. What is the total solid? The density D of the liquid. This is P or rho? Rho, I guess. It's rho L. ये रो है. ओके, सो इसकी मान लीजिए रो है. ये n टाइम्स रो है. हाँ शायद. ओके, चलो इसकी डेंसिटी ज्यादा है. नाउ यू पुट अ सिलेंडर इन दिस. The height of each liquid is h. So this is h and this is h. The solid cylinder, the cylinder floats with its axis vertical. The cylinder floats with its axis vertical. Acha. And length is rho L. In the denser of the two liquids, the cylinder float vertical and length rho L. It floats in the denser liquid. मतलब it does not touch the other liquid. Sure. So it is here. Non-mixing liquids. हाँ. But it says it floats in the denser. तो इसकी जो डेंसिटी है सिलेंडर की, इससे ज्यादा होगी ना इससे. हाँ. यहाँ तो रुक ही नहीं पाया वो सिलेंडर, तो डूब के अंदर चला गया, मतलब फ्लोट कर रहा है. Hmm. ये भी नहीं बताया कि कितना वो है. तो the density D is equal to how much? So if you have a liquid, you have a cylinder of height, we know. So it is floating in the denser. ये नहीं बताया कि how much portion is it? It is floating in the denser liquid. What will that mean? In the denser liquid. ऐसे या ऐसे? Fully submerged. P is less than 1. अच्छा.
तो इतना पार्ट ये रो एल है, राइट? और जो बाकी वाला पार्ट है ऐसे, तो टोटल लेंथ अगर एल है तो ये वाला पार्ट कितना है? एल माइनस रो एल। है। यही हुआ। हाँ। तो ये वाला जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करा है इसने नीचे, दैट इज रो एल ऑफ द हेवियर लिक्विड, राइट? हम्म, एन रो एल, एन रो, this is the volume, this is the length which is submerged, this is the density of the heavier liquid into g. हम्म, तो अगर इसकी लेंथ है, एरिया ए मान लेते हैं इसका, so this is the buoyant force which is available by the dense liquid. So this dense liquid is offering it some, and the balance portion is in the total weight of the cylinder, because its own density is d, L लेंथ है, डेंसिटी d है, और एरिया A है, ये इसका अपना वेट है. It is floating rho L. If you're floating this much in a denser liquid, this is the part which is floating in the denser, and this is a liquid which is non-submersible. मैं जैसे ऊपर मेरा एयर होता है, okay, but buoyant force is coming from here. ये जो choices हैं उसमें रो प्लस सब में आ रहा है, रो प्लस समथिंग. ये भी पी है, सॉरी. अच्छा, पी है. पी कहाँ से आ गया? सॉरी, दिस इज पी, राइट? हाँ सॉरी, हाँ। दिस पी. दिस इज पी एंड नॉट रो. If I just go with this logic, the solid part is what are we missing? आंसर तो इससे सारे नहीं मैच करेंगे. इसमें कोई वन प्लस एक्स्ट्रा है, वन प्लस रो. तो ऊपर वाला जो लिक्विड है डेंसिटी रो का, उसको भी डिस्प्लेस करा है इसने. It is immersed between two. So one is floating in the heavier liquid with some part. What happens to the upper part? What happens to the upper part is a question, right? So upper part में क्या होगा? This upper part also has displaced the above liquid, but this is getting a buoyant force, so it is a बड़ा tricky question है ये. What happens to the upper part? So, Upper part को क्या करें? Upper part. If you are in one liquid, okay, understood. So your two non-mixing bottom liquid हो गया. So I think upper liquid में भी कुछ, the 1 minus rho should do something. There is a volume in the, और उसका तो weight मैंने पूरे का ले लिया. Are we sure the buoyant force? इसका मतलब जो आंसर देख के बताऊं मैं, कि जो आंसर से बता रहा हूं मैं. आई थिंक द अवर लॉजिक इज मिसिंग, दैट दिस पार्ट is experiencing a buoyant force because of this liquid. So if I okay. take the A into rho L into, sorry, it's not rho, P. it is P plus N rho into G plus 1 minus P L.
द पार्ट विच इज अप, ऊपर वाला, अपर पार्ट 1 माइनस रो इनटू, इसकी डेंसिटी कितनी है? सिर्फ रो इनटू जी इनटू एरिया is equal to L into D into A into G. So the buoyant force is coming from the, अच्छा क्योंकि ऊपर भी आपने लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया है, अच्छा, so this is also liquid displace, so there is a buoyant force because of this. मैं तो आंसर देख के पता लगाया, so A सब में से निकाल दो, P L N रो प्लस L भी गया सब में से, why not remove everything, so P रहेगा, N रहेगा, रो रहेगा, प्लस 1 - P L गया, रो रहेगा, G सब में से गया, इसमें क्या रह जाएगा? वेट, D, सिर्फ D रह जाएगा ना, LAG तो सब में गया, तो डेंसिटी इज इक्वल टू PN रो प्लस रो माइनस P रो, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, P रो N-1 प्लस रो, रो सब में से कॉमन ले लेते हैं, सो रो P(n-1 + 1), कौन सा आंसर है? First. फर्स्ट. All right. So I think the mistake was that only the lower, I started with lower part, then I forgot that कि ऊपर वाला जो part है वो भी liquid को displace कर रहा है, and therefore it will also experience a buoyant force. Buoyant. Yeah. But difficult, not difficult, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, थोड़ा सा tough, tough as in distinction between I think सिर्फ इतना फर्क था कि ऊपर वाला लिक्विड लाइटर था और नीचे वाला डेंसर था, तो लाइटर लिक्विड जो है वो भी बॉइंट फोर्स लगाएगा ना, क्योंकि आपने उसको डिस्प्लेस करा हाँ. है ना, तो क्योंकि वो मैं नीचे वाले लिक्विड में डूबा हुआ था, तो मेरे को नॉर्मली ऊपर एयर होती है, हाँ. तो वो कभी भी ऐड नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्विस्ट डाल के एक Add. एयर की जगह लिक्विड डाल दिया विद डेंसिटी, Hmm. दैट क्रिएटेड, so the Archimedes principle, actually if you read the statement, it says any portion of a body submerged in a fluid will experience an upward force. So this body had two parts, the top fluid and the bottom fluid. So and you're displacing the volume in both the cases. Yeah. And अगर आप देखो, जैसे आप एक वुडन स्टिक है आपके पास, राइट, उसमें आप पानी और वो रख दो, पानी और ऑयल को अगर रखोगे हाँ. तो ये नॉन मिसेबल होंगे ना ये दोनों, हाँ. ऑयल ऊपर आ जाएगा, है ना, अब उसके अंदर Yes. आप एक स्टिक डाल दो वुडन की, हाँ. तो ऑयल हल्का होता है, आप हाँ. स्टिक जाएगी वो पानी तक चली जाएगी नीचे, और थोड़ी सी ऑयल के अंदर भी होगी, हाँ. जो पार्ट ऑयल के अंदर अगर उसे धक्का मारोगे ना, Hmm. you will feel a push by the oil. हाँ. So wherever there is a displacement of fluid, you will have to apply the buoyant force. Yes. Okay. Actually, the next question is the same question only. Let me see क्या है, एक सिलेंडर का ट्यूब है, ये हमने कर नहीं लिया, हाँ वही. दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड
This is not energy. There is no formation of a bubble like or a drop. Oh, ये तो वो है अभी जो हमने करा था. The next two questions are same only. No, 55 I'm saying. हाँ वही. 55, what is this to do with the fluids? पानी तो कहीं नजर नहीं आ रहा है इसमें. Are you sure ये fluid से उठाया है? हाँ. A balloon is तो air में जा रहा है मतलब है. Buoyant force is coming from air. So it is going down. It's like that question only जो अभी block वाला किया था. वो अच्छा 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 ओके. उसमें क्या करा था हमने, मैं भूल गया. उसमें क्या करा था हमने? जो हमने G/3 वाला किया था. अच्छा, तो इसमें बलून है. इट इज कमिंग डाउन विद ए राइट. तो इसमें जो नेट फोर्स है दैट इज एम ए प्लस जी. नो, इट विल बी जी माइनस ए, सॉरी राइट. बिकॉज हमें तो उल्टा लगाना होगा ना. हाँ. इट इज फीलिंग लाइट. एंड नाउ द हाँ. क्वेश्चन इज हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट. सो what should be the new mass m dash so that it starts moving up, so it becomes this. This is a new force on it. If you're decelerating down, you're decelerating. Fluid कहाँ से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा. Where is the fluid? Maybe in the balloon, a water balloon. It's a water balloon. हाँ, so the buoyant force ले सकता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा, right? So I can write. अच्छा अच्छा ओके या एयर में ही है मतलब है. So you mean पहले ये जब if it comes down, right, which means the weight is more than the buoyant force, right? ये buoyant force है, हमें पता नहीं कितनी है, right? क्योंकि हमें वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं मालूम ना, डेंसिटी. Now what we want is we remove some weight from it, so let the new weight be xg. Then what happens, the buoyant force is high, so buoyant force minus xg is equal to ma, but in the upward direction. Hmm. So what do we do now? So but this is x. So if I add these, I'll get mg minus xg is equal to ma plus xa, right? So mg is equal to यहाँ ma से plus G form. xa minus xg. So mg minus ma upon a minus g is equal to x. ये क्या आ गया? ऐसी कोई चॉइस है? Yeah. No. Wait. So when you're descending down, your buoyant force is losing, right? So weight is winning. So net acceleration is this. When your buoyant force wins, the weight loses, which is downward. So the weight xg, अभी weight कम कर दिया. अच्छा, ये तो x आया ना, तो हमें तो subtract करना है x को. So this is your if I take m common, I will get g minus a upon a minus, no, something wrong here. क्या? I have reduced the weight to new level. So my new weight, now my buoyant force is winning. So my buoyant force is winning. So I'm going up and I'm beating the weight. So my new XA is my new weight. So now if I solve this, because I don't know the buoyant force I added. So mg minus xg is equal to ma plus xa. So my mg is equal to ma plus xa. Oh, this is plus, right?
इधर जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ तो ये a प्लस g हो गया ना, राइट? सो द फ्रैक्शन ऑफ मास which stays is this. ये फ्रैक्शन है, तो जो बैलेंस मास बता वो कितना कितना होगा? ये वाला फ्रैक्शन बच गया, मतलब जो फेंकना पड़ गया. This stays, हाँ right? This stays. So the हाँ ones which has to be thrown is 1 minus this. So m minus this, right? Answer. Let's see which choice matches. the first one. Yes, फर्स्ट मैच हो गई. Yeah, you're right. एक्चुअली मैं थोड़ा सा इससे वो घूम गया, क्योंकि मतलब कहीं लिखा नहीं था ये इट इज ट्रैवलिंग इन एयर विच हैज अ दिस, ऐसे इनडायरेक्टली वो आई टुक इट एज अ लिफ्ट क्वेश्चन स्ट्रेट अवे. हाँ उन्हें तो बॉइंट फोर्स हो गई, मतलब, है ना? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है कोई? नहीं. ठीक है. व्हाट अ मैराथन Seriously. it was, but I hope it was a good discussion and gave you some more confidence to solve questions. Yeah. How to think, मतलब देख के भी कई बार you get to know a lot of things. अच्छा, this is a way to look at it, right? Yes. And you can bring more questions if you want to, right? But my उसको करते रहो साथ साथ, you get हाँ more sources. But I think अगर आपने वो कर लिए अपने सर के जो भी हैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स कर लिए हैं, टेस्ट पेपर्स के निकाल लिए हैं, पुराने नीट के कर लिए, एसएल कर लिया है, मोर देन इनफ है. हाँ. क्योंकि देयर इज नो एंड टू इट, राइट? Yes. Wherever you still feel there Seriously. is a weakness, like you said, submerged में समझ नहीं आता, but you would have realized submerged का क्वेश्चन सबसे इजी है. हाँ. आई थिंक ये ज्यादा टफ है थोड़े से. ये आई थिंक द मोस्ट गुगली केम फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी. Yes. दिस आल्सो वाज अ गुगली, नीट 2016, बट इतना नहीं था क्योंकि पॉइंट फोर्स लग रहा था डिस्प्लेस करके आ ही जाएगा, क्योंकि आंसर से दिख रहा था मुझे. द हाँ. आंसर वाज टेलिंग मी दैट द ऊपर वाले का भी पॉइंट फोर्स ले लो, Hmm. जो जनरली इग्नोर करा जाता है. दिस वाज अनदर गुगली फॉर मी, बट rest of it was pretty straight. One is controversial, which is a graphical question, but I will stick to my ground. Choice number 4 is correct unless proven right. So go back and ask your coaching institute to solve it Okay. and show it to you. How is it? Okay. And then share it with me. Okay. My logic is it is y is equal to minus 1 by x square graph. Right. That's the way I Okay. look at it. Too mathematical, but still I'm curious to know. You don't need to know because it's not neatish question. It's way too tough for a neat. ठीक है जी. Yeah. Yeah. Let's go up to But sleep now. no. We have earned it, I think, है ना? सो सकते हैं. तो even if you have difficulty in your class 12th, any question which you're doing, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको मिला और आपको लगा कि इट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आजकल? The charges one, electric चेक field. विद मी. यू गेट एन असाइनमेंट, यू नॉट एबल टू डू अ क्वेश्चन, डोंट वरी कि हम वो नहीं पढ़ रहे हैं. चेक विद मी. Okay. No problem. राइट, इट्स अ फिजिक्स, राइट? हाँ. चेक विद मी. पुराना तो करो ऐसे ही, और बहुत आपको लगेगा फर्क थोड़े टाइम में, दैट ओके या नो इट्स एन आई ओपनर. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मजा आया, काफी काफी बेटर हो गया, राइट? हाँ. नाउ बी रेडी फॉर माय टेस्ट. When it would be आप some बता दो idea? व्हेन यू कंफर्टेबल, आई विल टेक इट. कोई मुझे जल्दी नहीं है, बट डू टेक इट बिकॉज इट विल गिव यू ग्लिम्स ऑफ टाइम बाउंड वर्क. दैट Yeah. इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? वी नीड टू डेवलप योर टाइम बाउंड मसल. आर्किमिडीज की, कैपिलरी की, यही है दो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट. और क्या है इसके अंदर? सरफेस एनर्जी की, राइट? I'm comfortable with either Wednesday or Saturday, Sunday because ठीक है. Let's that's keep it fine. on Saturday, Sunday because I will give you only uh,
20 or 25 questions Okay. and 20 to 25 minutes of time, and the test will be only allowed once and it will shut down once you open it. Once you हाँ open it, you cannot close it. कि बाद में करेंगे. If you हाँ हाँ. open it, you have to finish. Otherwise, you get a 0. Yeah. So you will get complete feedback on how you did, what areas you're good at, what areas you were weak at. So you will need to revise those concepts. I will again help you. Oh, Maybe sometimes a memory issue. उस समय याद नहीं आया, right? पता था शायद. हाँ. And then you need to practice more. तो retain हो जाएगा थोड़ा और. Let's see how you do it, right? So let's keep it for Saturday, Sunday is good because I need some Oh, time to prepare it also. okay. ठीक है?